So we are live. That's the magic of revisions. Every cut is necessary and every cut hurts. But something new always grows. Good evening to one and all present here. I, Samyak Modi, Joint Editor, Nagpur branch of Vikasa, welcome you all to this session, Wizard's Corner, wherein our guest faculty will be discussing mock test paper, how to solve the paper strategically, and some important exam tips. So, without taking much of your time, I would like to recognize the presence of CA Akshay Gulane sir, Chairman Nagpur branch of Vikasa, CA Kirit Kalyani sir, Chairman Nagpur branch of WIRC, CA Abhijit Kelkar sir, Regional Council member, WIRC, and our guest faculty for the session, CA Sashank Sharma sir. Now I would request our mentor, the dynamic CA Akshay Gulane sir, to give his opening remarks. Over to you, Akshay sir. Thank you. Thank you so much, Samya. Chairman of Nagpur branch, CA Kirit Kalyani sir. In absentia, Regional Council member, CA Abhijit Kelkar sir. My colleagues in the managing committee of Nagpur branch, my Vikasa team, Pradnya, Samyak, Anmol, Kritika, Akansha, Kajal, and Mukul, and my dear friends. I know this is the most crucial time for you all. Definitely, those who have those whose attempt was due in May must have waited so long for giving the exam. Best of luck for your exam. I will not take much of your time. Vikasa Nagpur is trying hard to serve you all in the best possible manner in this pandemic situation and using technology to provide you best possible revision of the subject. Please give mock tests as well as attend the sessions by faculties wherein your mock test queries will be resolved along with the tips on how to solve the question paper. I know you all are really hard worker and must have studied day in and day out, and definitely you have defined a strategy for the exam. But as a friend, I will feel that now two things are most important for you. First, prepare yourself for the exam environment, like practice solving the question papers within the stipulated time by using a stopwatch. Be disciplined, solve RTPs at home at the exact exam time, like for example 2 to 5 p.m. Then second most important thing is prepare your mind and make a strategy for how to solve the question paper. Like what question and which question to attempt first, how to lay out your answer sheet, and which question generally carries what weightage of marks, etc. So that you will be prepared enough that whatever goal you have defined in your paper, you will achieve that very easily. One uh, tip I will say or suggestion I will say, attempt 100% questions, attempt 100% marks in your exam, no matter how you manage your time, but do not leave any question unattended. Once you do all these things, I'm sure you will your exam with flying colors. Today, CA Shashank Sharma ji is going to guide about the corporate and other laws. And we are thankful to Shashank sir for sparing your valuable time. Thank you so much, sir. Once again, best of luck, students, and do your best. Thank you. Over to you, Samir. Thank you so much. Thank you, sir. Now, I would request our very calm and courteous CA Kirit Kalyani, sir, to address the gathering. Over to you, Kirit, sir. Thank you, Vice Samyak. Chairman Vikasa Nagpur 2020, CA Akshay Gulaneji, CA Abhijit Kelkarji, RCM in absentia. Today's faculty come friend for CA students, I must say, CA Shashank Sharmaji, and yes, my dear friends. I sincerely feel the points, the tips that CA Akshay Gulane sir conveyed a few minutes earlier. Really, I second the submission, and yes, all of us friends need to work hard because of pandemic. First challenge is to get back to our required tempo. We need to concentrate much more
than the earlier years or the students who appeared in the earlier years, because it's really tough that after pandemic, after health crisis, we need to concentrate on studies now, and that too very sincerely. Yes, I must compliment Vikasa Nagpur 2020, the team. Even in these testing times, they have really managed to come with all the events that are needed for the benefit of students' fraternity. Today, yes, we are really fortunate to have CA Shashank Sharma ji, who is going to guide as regards the first day of our ODR. I sincerely compliment the team Vikasa and sincerely wish all the very best to the student friends who are going to appear in their coming examinations, and sincerely wish that they should become chartered accountants at the earliest juncture possible. I once again convey my well wishes and extend thanks to CA Shashank Sharma ji for agreeing to guide the students, and convey my best wishes to students as well. Thank you. Thank you all. It's over to you, Samyak. Thank you, Kirit sir. Now, I would like to introduce our guest faculty for the session, CA Shashank Sharma sir. Shashank sir is a chartered accountant and has completed his graduation in commerce. Sir has been teaching and guiding students since 8 years. Sir has also cleared the post-qualification course of Diploma in Information System Audit and the course on Concurrent Audit conducted by the Institute of Chartered Accountants of India. Sir is also a visiting faculty at the Regional Training Institute, Nagpur, of the Indian Audit and Accounts Department for the training of AG officers. Sir is a visiting faculty at ICAI and various coaching and training institutes and contributes articles regularly to reputed publications. Sir is also the author of various textbooks on taxation and law published for the students of CA and other professional examinations. It is indeed an honor to have you with us today. We welcome you, sir. Over to you, Shashank, sir. Thank you. Thank you. So, first of all, I would like to thank the team Vikasa for giving me the opportunity to serve the students. And we'll be discussing the mock test paper, first of all. And then we'll be discussing how to present the paper. In fact, while we'll be discussing the mock test paper, we will continue the session along with the mock test paper. Means we'll be discussing the required answers, how the answer should be written, and what should be the paper presentation along with this question paper. So it will definitely help you, and how you should present your paper, and how you should have the focus at the time of examination. So let's begin the session with the discussion on MTP. First of all, as you know, we have 3 types of questions now in your exams. The first thing, it has been divided into 2 parts. First is division A. Let's continue in Hindi plus English so that everyone should be able to get the points. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जो पेपर है 3 पार्ट्स में 3 प्रकार के क्वेश्चंस में आप डिवाइड कर सकते हैं. उसमें भी बेसिकली पेपर को 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे, बट जो आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस किस किस प्रकार के आ सकते हैं, तो उसमें आप उसको 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कंपल्सरली आपको 30 मार्क्स के आने वाले हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता है. और आपको ये भी पता है कि मैं हर बार ये बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे मत भागो. इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व ही मत करो, कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो. और वो चीज आप खुद देख सकते हैं. The way the paper has been given, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें पूरी केस स्टडीज आई है. आप कितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर लो, इट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप ये सॉल्व कर पाए अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो. सो पहली जो चीज है हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो कैसे क्या आपको सॉल्व करना है और इसको कैसे क्या प्रोसीड करना है. लाइक कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़ें कैसे इसको, ये पूरे क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ना चालू करें, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे मैं चालू करूंगा. दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्टली जो डेफिनेशंस आ जाएगी या डिफरेंस बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो. एंड द थर्ड टाइप इज केस स्टडीज, जो आपको लिखना पड़ता है पूरा डिस्क्राइब करते हुए
along with जो भी provisions of the law है वो. So let's begin with the paper. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर है it has been divided into two parts. The first is division A, 30 marks. हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को पिन अप कर लें, और पिन कर लेंगे तो मैं पूरा फुल स्क्रीन पे आपको दिखाई दूंगा. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, जब भी आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, खास तौर पे अगर आप पिछले कुछ पेपर्स देखेंगे, उसमें आपको पहले जो एमसीक्यूज हैं वो केस स्टडी के रूप के हैं. पूरा कंसेप्ट थॉरोली आपसे पूछ लिया जाता है. सो हाउ टू प्रोसीड टू राइट सच क्वेश्चंस, सच आंसर्स. पहले तो मैं बोलूंगा आप पहले केस स्टडी पढ़ो ही मत, डायरेक्टली पहले पहुंच जाओ आप उसके जो क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्टली एमसीक्यू पे आ जाओ उसके. क्योंकि क्या होगा ना, एमसीक्यू अगर आपने देख लिया मींस यू विल हैव द क्लियर आइडिया. आपको समझ आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कौन सी चीज के ऊपर पूछे जा रहे हैं, और फिर आपको एक एंगल पता लग जाएगा कि किस हिसाब से आपको ये केस स्टडी सॉल्व करना है. द फर्स्ट थिंग इज आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो. जैसे पहला क्वेश्चन, वो भी पूरा डिटेल नहीं, ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चंस विद ऑप्शंस पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं. आप जो क्वेश्चंस पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको रिगार्डिंग अनपेड कॉल. आपको पूछा गया है क्या डिविडेंड जो है, डिविडेंड वगैरह पे किया जाना है या नहीं पे किया जाना है. अगर आप देखोगे तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, एडजस्ट किया जा सकता है. क्वेश्चन देख के आपको समझ गया, अनपेड कॉल दिख गया और डिविडेंड दिख गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है. अगर कॉल पे नहीं किए तो क्या डिविडेंड पे किया जाएगा या क्या उसको एडजस्ट किया जाएगा. फिर यहां से एक एंगल आपको समझ गया कि पहली चीज डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, डिविडेंड वाला जो टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए. तो जब आप केस पढ़ोगे ना, बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें होती है, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको डिविडेंड के एंगल से पढ़ना है. दूसरा क्वेश्चन भी देख लो साथ साथ में, द सेकेंड क्वेश्चन. उसमें अब बता दिया इंटरनल ऑडिटर अंडर सेक्शन 138. बस इंटरनल ऑडिटर बता दिया ना, उस एंगल से पढ़ना है. आपको क्या पॉइंट्स ध्यान देना है वो आपको समझ जाएगा, आपका टाइम बहुत बचेगा. और जैसा कि आपको पता है आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, बट फिर भी अगर आपने डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ना चालू किए ना, तो जो भी आपको 15 मिनट पहले भी पेपर मिलेगा ना, वो वेस्ट हो जाएंगे 15 मिनट. डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ना मत चालू करो, क्वेश्चंस पढ़ो पहले. देन द थर्ड क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू अगेन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. आपको समझ गया यहाँ पे भी डिविडेंड के ऊपर है, और पूछा है ज्ञान फाउंडेशन जो है वो क्या डिविडेंड बांट सकता है, उसके हिसाब से कुछ तो भी क्वेश्चन होगा. तो आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनी दी जाएगी, और नाम से ही समझ गया आपको ज्ञान फाउंडेशन, ना उसके पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा है ना प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये क्या है, ये एक सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए. ठीक है, तो आपको देख के समझ जाता है. और फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी आप देखो सेक्शन 127 बोल दिया है. सेक्शन 127 बोल दिया तो आपको समझ गया कि ये किसके ऊपर है, कि अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो क्या होगा, और डिविडेंड कितना पे होना चाहिए, क्या अमाउंट आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्या अमाउंट आप एडजस्ट नहीं कर सकते. अगर आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको कई बार बताया हूं, जो भी लोगों ने मुझसे पढ़ा है या जो नहीं भी पढ़ा है तो उनको पता होगा कि पेनल्टी बहुत सारी है कंपनीज एक्ट में. और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कंपनीज एक्ट में पेनल्टीज याद मत रखो, लेकिन कुछ पेनल्टीज याद रखने में हमेशा बोलता हूं. सेक्शन 127 एक ऐसी पेनल्टी जो मैं हमेशा याद रखने जनरली बोलता हूं. ठीक है, वो आपको पढ़ते पढ़ते समझ जाता है कौन सी पेनल्टी ज्यादा काम की है और कौन सी नहीं है. सो अगर आप देखो तो ये बेसिकली डिविडेंड और एक पॉइंट इसमें इंटरनल ऑडिट का है, तो इसके हिसाब से अब आपको प्रोसीड करना है. अब जब आप इसके क्वेश्चंस पढ़ोगे, अब जब आप ये केस को पढ़ोगे, तो अब आपका बराबर ध्यान वहीं जाएगा. जैसे कि पहले बताया है, मिस्टर अभिनव ज्ञान is a tech expert and one among the promoter of Dune Technology Limited. तो प्रमोटर है, इसने इंजीनियरिंग किया, ये सब कोई काम का नहीं. अब उसके बाद फिर आईआईटी वगैरह से पढ़ने के बाद ही परस्यूड की स्पेलिंग गलत है, उस पर ध्यान नहीं देना कि गलती क्या है. गलती यहाँ भी है, प्रमोटर जो है वन अमंग द प्रमोटर्स होना चाहिए, बट ठीक है, अपन को गलतियां नहीं ढूंढना है. फिर मास्टर्स इन मैनेजमेंट वो किया डायरेक्टली. He started DTL 15 years back, 15 साल पहले बनाया है इन्होंने. ठीक है, फिर DTL फेमस है एडवांस टेक्नोलॉजीज में, आगे का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वो सब पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. कंपनी वेंट
पब्लिक अ डिकेड अगो, 10 साल पहले ये पब्लिक कंपनी बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद से हमेशा ये एक्सपांड हो रही है। डिटेल इज एक्सपेंडिंग द ऑपरेशंस इन द वेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराइजेस आउट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हेंस विलिंग टू रिटेन द प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट रखना चाहती है, मींस इट इज नॉट विलिंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड, ज्यादा डिविडेंड नहीं देना चाहती। अब यहां से अपना पॉइंट चालू होने लग गया। जैसे ही इसने बोल दिया कि वो अपॉर्चुनिटीज देखते हुए इट इज विलिंग टू रिटेन द प्रॉफिट, आपको समझ गया यहां से रिटेन कितना करना है और डिविडेंड कितना बांटना है, ये पॉइंट चालू हो रहे हैं। पर शेयर होल्डर्स बोलते हैं हमको डिविडेंड चाहिए, बिकॉज फॉर शेयर होल्डर्स लार्जर द बॉटम लाइन मींस लार्जर द डिविडेंड। और कोविड के चलते, कोविड इज अनदर रीजन विच फोर्स द डायरेक्टर्स टू रिटेन द अर्निंग्स आफ्टर क्लोजर ऑफ बुक्स बंद हो चुके हैं। डायरेक्टर्स प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ 20%। तो कोई दिक्कत नहीं, 10% बोला है तो शेयर होल्डर्स 10% के ऊपर नहीं बोल सकते, ठीक है, ये आपको पता है। बट कंसिडरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन विच कॉजेस डिले इन डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट्स, रिजल्ट्स इन डेफरमेंट ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन टू रिवोक द डिविडेंड। वो रिवोक करना चाहते हैं, तो रिवोक किया जा सकता है क्या? तो वंस डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ठीक है। पॉइंट्स अपने आप आपको ध्यान आते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन किस पॉइंट पे है आपको क्योंकि स्पेसिफिकली पता है। फिर इसके बाद आगे अब आ गया शेयर होल्डर सीक्स अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। शेयर होल्डर्स बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करो ऑन कॉन्करेंट बेसिस, वेयर एज मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं, हमको इंटरनल ऑडिटर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बर्डन रहेगा, हमारी कंपनी का खर्चा बढ़ेगा। सीए है इंटरनल ऑडिटर तो पैसा ज्यादा लेगा, सीए है या जो भी है, सीडब्ल्यूए भी हो सकता है। फिर आपको फिर फाइनेंशियल पोजीशंस बता दिए गए हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 45 करोड़, टर्नओवर 495 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। यहां से अगेन अब आपको समझ में आता है कि ये दे दिया है तो इससे आपको डिटेल में पूछना चाहते हैं ये कि भाई कितना लिमिट है, तब आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो लिमिट्स कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको पता होगा लिमिट्स वगैरह कैसे याद रखी जाती है, बट फिर भी मैं इसका एक तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। फिर आगे ये भी बोला है कि जो बोरोइंग्स है इसमें कुछ इंटर कॉर्पोरेट लोन है 25 करोड़ का, एंड जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स 31 मार्च तक के 30 करोड़ थे। तो आपको लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन रहेगा 100%, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर रखना है तो क्या लिमिट रहती है, तो वैसे आपको याद होगा लिमिट है। याद रखने का तरीका है आप उसको ऐसे कोई फिगर्स में याद रखो, जैसे 25, 50, 100, 200, इस प्रकार की लिमिट है यहाँ पे 25, 50, 100, 200। अब ये 25 क्या है, 50 क्या है, 100 क्या है और 200 क्या है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब भी आपको लिमिट याद रखना है ना, तो लिमिट्स कैसे याद रखते हैं आप, कभी भी ध्यान रखना टर्नओवर जो रहता है ना वो सबसे ज्यादा होगा, टर्नओवर। क्योंकि क्या होता है, टर्नओवर जो है ये बढ़ जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। समझो आपको आपके पिताजी ने कुछ पैसे दिए, 1 लाख रुपए दिए, आपको बोले जा बिजनेस कर। आपने सोचा कहां बिजनेस, अपने को तो पढ़ाई करना है, आपने जाके पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल है, अब आपने उसको लगा दिया इन बिजनेस। अब बिजनेस में शेयर मार्केट, अब शेयर मार्केट में वो आप रोलिंग करोगे, ऐसा तो नहीं कि बस शेयर खरीद के छोड़ दिए, आप वो खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, अल्टीमेटली टर्नओवर बढ़ते जाता है। और जो आपका टर्नओवर है वो मल्टीप्लाई होगा ड्यू टू रोलिंग, और इसलिए टर्नओवर जो रहता है ना वो हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। कोई भी लॉ में आप जब फिगर्स पढ़ रहे हो, फिगर्स याद रखना है, ध्यान देना कभी भी टर्नओवर सबसे ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। जब भी लिमिट्स आप ध्यान रखते हैं टर्नओवर सबसे ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं और धीरे धीरे इसके ऊपर और चर्चा करूंगा, ठीक है। तो 25, 50, 100, 200 क्या है, तो 25 यहाँ पे डिपॉजिट्स की लिमिट है। 50 जो है, 50 किसकी है, पेड अप कैपिटल की लिमिट है। 100 जो है, 100 बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने जो बोरोइंग्स किए हैं उसमें इंटर कॉर्पोरेट लोन नहीं गिने जाते, तो 100 जो है ये क्या है, ये आपकी लिमिट है फॉर दी बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे वर्ड्स ऐसे लिखे हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी अगर साल भर में
एक बार भी 100 के ऊपर गया, ये इवन डिपॉजिट्स के लिए लिखा है, 25 के ऊपर गया तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है, पिछले साल में। फिर तो 100 क्या रहेगा, तो 100 जो है ये ऑलरेडी आपको जैसा मैंने बताया लोन्स है, और 200 जो है ये टर्नओवर है। अब ये 50 और 100 को कैसे याद रखना, इसका भी एक लॉजिक है। 50 पेड अप कैपिटल, आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना होता है, 2 का होता है। तो अगर आपको पता होगा डेट इक्विटी रेशियो 2 का होता है, यानी 1 रुपया खुद का लगाया तो 2 रुपए बाहर का लगा सकते हैं, बस वही है। 50 रुपए हमने खुद का लगाया, इक्विटी लगाया, 100 रुपए बाहर से ले लिया, बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार से आपने याद रखना चाहिए, ठीक है। तो 25, 50, 100, 200, अगर आप उसको रटने की कोशिश करोगे इम्पॉसिबल है। हर जगह आपको देखना है कि सीएसआर में क्या लिमिट है, कैसा है, तो 1505, 1505, इस प्रकार से याद रखो, ठीक है। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन। मिस्टर ज्ञान, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ डीटीएल, out of his savings bought 40,000 shares of another company, Time Consultancy Services, TCS. 10 रुपए के शेयर्स थे। Of such shares, the final call of ₹2 is due but unpaid. तो 2 रुपया अभी भी पे नहीं किया, फाइनल कॉल यानी 8 रुपया पेड है। In the meantime, TCS declared the dividend at the rate of 15%. Out of the total dividend, 8.4 crores declare 31 अगस्त को, 42 लैक्स जो है वो अनपेड है। अब क्रोर्स में मत पढ़ो, अगर पॉइंट में है तो उसको लैक्स में पढ़ो। तो 0.42 करोड़ रहने कितना होगा, तो 42 लैक्स, ठीक है। ये अनपेड है 30 सितंबर तक। आउट ऑफ 42 लैक्स 12 लाख क्यों नहीं पे हुआ, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसा कि आपको पता है, अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ है तो सेक्शन 127 बोलता है आप नहीं पे करोगे तो चलेगा। जैसे कि क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप इज इन्वॉल्व, कि किसको डिविडेंड पे करना है ये डिस्प्यूटेड है, तो लॉ जब तक के बताएगा नहीं तब तक के आप उसको नहीं पे करोगे, ठीक है। एंड दूसरा 3 लैक्स ऑन अकाउंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट ऑफ राइट्स। तो ये दोनों ही लगभग सिमिलर चीजें हैं कि लीगल डिस्प्यूट है या ऑपरेशन ऑफ लॉ है, उसके कारण आप उसमें पे नहीं कर पाए। द अनपेड डिविडेंड वाज फाइनली पेड ऑन 12 दिसंबर 2020 इन फुल। 12 दिसंबर को पे कर दिया। अब ज्ञान एक हम्बल बैकग्राउंड से, नाम से समझ रहा है ज्ञान है, हेंस उनका ये सोचना है कि भाई सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए, एजुकेशन वगैरह को प्रमोट किया जाए, और इसीलिए उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी बनाया था 2 साल पहले। who later become the member of such company, receipts are excess of expenditure, hence it was decided that Gyan Foundation will declare some dividend to its members. ये भी आपको समझ गया, ये नहीं किया जा सकता क्योंकि जो ज्ञान फाउंडेशन है वो सेक्शन 8 कंपनी है। ये ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते से बता दिया था। तो देखो आपका पहले ही क्वेश्चन पढ़ने का नजरिया समझ जाता है अगर आप पहले इसके जो एमसीक्यूज पूछे गए उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको आंसर्स के हिसाब से बताता हूं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कैसे कैलकुलेट करना। 2 मार्क के क्वेश्चन है, अब फ्री में तो दिए नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स बाकी जो सादे वाले एमसीक्यू आप देखोगे वो बड़े आसान दिखेंगे, पर केस स्टडीज जो है वो आपको उतनी आसान नहीं लगेगी। अल्टीमेटली इसमें आपका ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। तो जो नॉलेज जिसका क्लियर है, जिसको सब चीजें पता है, वही इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकता है। तो देखिए क्या बताया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से। Regarding unpaid call money by Mr. Gyan in the light of dividend due to him from TCS, TCS वाले की बात हो रही है, ज्ञान फाउंडेशन नहीं। State which of the following statement holds truth। तो किसमें सच्चाई है, TCS वाला। TCS वाला यानी कौन सा, जो अभी हमने पढ़ा, जिसके 40,000 शेयर्स ज्ञान ने खरीदे थे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अब, तो TCS वाले की। मीन्स ये वाले पैराग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब, ठीक है। आ जाते हैं। डिविडेंड कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अनपेड कॉल। क्या डिविडेंड एडजस्ट किया जा सकता है, क्या लगता है आपको, डिविडेंड एडजस्ट किया जा सकता है अगर कॉल्स नहीं पे किए तो? अनपेड कॉल से एडजस्ट हो सकता है क्या, क्या लगता है आपको? आप माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, अगर आपको कुछ भी जवाब देना है या कुछ है तो आप चैट में भेज सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप माइक ऑन नहीं करेंगे, आपको जो भी बताना है, जो भी बोलना है, तो आप चैट बॉक्स जो है चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो पहली चीज, क्या एडजस्ट किया जा सकता है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहला पॉइंट तो बोल रहा है इट कैन नॉट बी एडजस्टेड।
तो ये तो गलत है क्योंकि एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको पता है अगर अनपेड कॉल है तो एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है। देन द डिविडेंड ऑफ 48,000 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनपेड कॉल। 48,000 कहां से आया? अगले पार्ट में भी दिया है, डिविडेंड ऑफ 48,000 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल इफ कंसेंट इज गिवन बाय मिस्टर ज्ञान। और एक और दिया है, डिविडेंड ऑफ 64,000 कैन बी एडजस्टेड इफ द कंसेंट इज गिवन। देखो वैसे तो आप यहाँ तुक्का भी मारोगे तो सही आंसर हो जाएगा अगर आप देखो तो आप इसको तुक्का मारोगे, अगर आप देखोगे दो जगह 48,000 है तो 48,000 सही होगा, और आगे का तो आपको पता ही है, इट कैन बी एडजस्टेड, तो तुक्का भी मार के सही हो सकता है। पर ऐसा नहीं, क्योंकि वैसे आप तुक्का मारोगे तो आपको दो जगह 48 दिख रहा है, एक जगह 64 दिख रहा है, तो आपको समझ रहा है 48 ज्यादा सही दिख रहा है, बट ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है आपने इसको समझो ये क्यों आया ऐसा। तो देखो कितने शेयर्स थे उनके पास, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से जाके, 40,000 शेयर। 40,000 शेयर पे कितना डिविडेंड आएगा, ज्ञान को कितना डिविडेंड मिलेगा? तो इनको मिलेगा 15%। पर आपको एक और रूल पता है, डिविडेंड किस अमाउंट पे दिया जाता है? पेड अप वैल्यू पे दिया जाता है। पेड अप वैल्यू कितनी है? 8 रुपए। तो 15% तो दिया जा रहा है बट 8 रुपए के ऊपर, सो इसके हिसाब से 48,000 आया। तो जो कि आपको शायद कंफ्यूजन हुआ होगा, आपको शायद लगा होगा कि ये कहां से आ गया 48,000। तो अगर आप उसको अच्छे से देखते हैं तो 48,000 कैसे आता है? 40,000 शेयर्स हैं, यहां से फिर से बताता हूं, 40,000 शेयर्स हैं, फिर 10 रुपए के हैं लेकिन 2 रुपए ड्यू है, यानी 8 रुपीज पेड है, और इस पे डिविडेंड कितना मिल रहा है? 15% का। तो आप यहां से निकालेंगे 40,000 इंटू 8 रुपए पेड है, उस पे आपको डिविडेंड मिलता है 15%, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 48,000। तो ऐसा 48,000 आया। तो देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया, और ये लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपको कंसेप्ट्स पूरे पता है। तो आपको ये भी पूछ लिया कि पेड अप कैपिटल के ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है, तो है 2 मार्क का, लेकिन देखो कितना कम लिख के इसमें आपको 2 मार्क मिलते हैं। दिमाग ज्यादा लगाना है बट आपको लिखना कम है इसमें। सो इस प्रकार से आप यहाँ पे मार्क्स फेच कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा बट फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, ऑफ कोर्स आपको 6 मार्क दे रहे हैं तो 6 मार्क फ्री में नहीं देंगे, या 8 मार्क दे रहे हैं तो 8 मार्क फ्री में नहीं देंगे। और सोच के देखो अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये 8 मार्क्स आपके डूब जाते हैं, सीधा सीधा 8 मार्क गया। तो ये कैसे ध्यान रखना आपने, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिवीजन, तो आपको रिवाइज करके जाना है पूरी चीजें, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्वेश्चन है, ऐसा एकदम कोई सी कैटेगरी क्वेश्चन नहीं है, तो सब ए कैटेगरी पॉइंट्स पे क्वेश्चन मिला है। हर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है। सो अल्टीमेटली आसान था क्वेश्चन, तुक्का मार के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तुक्का मत मारो। कभी गलती से अगर इंस्टीट्यूट और ज्यादा होशियारी बता दे, इंस्टीट्यूट अगर यहाँ पे 64,000 यहाँ भी लिख दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम ऑप्शन ऊपर दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा अपन इसके बेसिस पे मत रहो कि भाई तुक्का मार लेंगे अपन और हो जाएगा, तो नहीं, आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अप्रोच कैसे होना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, अल्टीमेटली आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो मैं तो अभी इतना समझा के बता रहा हूं इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आप पढ़ोगे ये चीज आपको ऐसे ही समझ जाएगी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था, DTL इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, क्या करना पड़ेगा? इज DTL रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर अंडर सेक्शन 138? तो पहले तो नो बोल दिया, तो नो आंसर क्या सही है? आप यहीं से देख लो, मैंने आपको जब बताया 25, 50, 100, 200, क्या 25 के डिपॉजिट्स हैं? तो यस, 25 के डिपॉजिट्स भी थे, ये नहीं नीचे वाला, तो 25 के डिपॉजिट्स आपके थे, ठीक है। एट एनी पॉइंट वर्ड है वहां पे, ठीक है, इसके हिसाब से भी अपॉइंट करना है। दूसरा 50, तो 50 वाला पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, इसके हिसाब से नहीं करना है, तो करना है ये तो पक्का हो गया। फिर दूसरा, फिर आपको देखना है लोन फ्रॉम बैंक्स 105 है, बट अल्टीमेटली 105 नहीं रहेगा, अल्टीमेटली आप देखोगे ये 25 कम हो जाएगा क्योंकि इंटर कॉर्पोरेट लोन नहीं देखे जाते, तो इसके हिसाब से भी नहीं करना है। एंड टर्नओवर 295, 200 के ऊपर ही करना है आपको, तो यहाँ तो 295 हो गया, यहाँ पे आपको अपॉइंट करना पड़ेगा,
ठीक है। सो दो चीजों के हिसाब से आपको समझ रहा है, एक डिपॉजिट्स के हिसाब से अपॉइंट करना है, दूसरा टर्नओवर के हिसाब से। तो लेट्स सी ऑप्शंस क्या है। तो नो वाले तो पहले ही कैंसिल कर दो, नो वाले में कोई मतलब ही नहीं बचा। यस टर्नओवर क्योंकि 200 है, तो पहला ये ठीक हो गया। यस बिकॉज आउटस्टैंडिंग लोन इज अबव 100 करोड़। ये क्यों गलत है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक्स देखा जाता है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटर कॉर्पोरेट नहीं देखा जाता। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो स्पेसिफिकली लिखा है जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन है। तो देखो एक एक वर्ड पे क्वेश्चन पूछा है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आने वाले हैं, ऐसा देख के लगता है। ये अभी लगता है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस और आसान होते जाएंगे। सो ये हो गया पहला पॉइंट। थर्ड जो है ये सिंपल हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन, ये फ्री के 2 मार्क्स है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय ज्ञान फाउंडेशन स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो सही है। ज्ञान फाउंडेशन कैन डिक्लेयर डिविडेंड गलत हो गया, कैन डिक्लेयर डिविडेंड गलत हो गया, कैन नॉट डिक्लेयर बिकॉज 3 years नॉट elapsed गलत हो गया, तो यही सही है। ठीक है, सो कैन नॉट डिक्लेयर इन एनी केस, सिंपल। तो ये वाला फ्री का हो गया, एक थर्ड वाला जो पॉइंट है फ्री का क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखो पहले ही अगर आप फंबल हो गए, पहले ही अगर आपने कंफ्यूज हो गए, आपका अगर कॉन्फिडेंस कम हो गया तो दिक्कत जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू बाद में उठाना चाहिए तो आप बाद में उठा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। बट मैं बोलूंगा एमसीक्यू पहले उठाओ। अगर आपका एमसीक्यू क्लियर हो गया ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 30 मार्क्स आपके अचीव हो गए, 30 में से 25 मार्क्स अचीव हो गए, एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब तो फिर सिर्फ 15 मार्क्स चाहिए पास होने को। और एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए हम देखेंगे अभी थ्योरी कैसे लिखना है, उसके ऊपर भी अभी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। सो ये हो गया। और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी व्हिच टीसीएस नीड्स टू पे अंडर सेक्शन 127। अब ये थोड़ा आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो 127 में पेनल्टी क्या लेना है? वैसे आपको पता है 18% की पेनल्टी लगती है कंपनी पे, ये पता है आपको। पर अमाउंट कैसे निकालना, 18% कैसे निकाला जाएगा? एक तो आपको अगर 18% पता है, तो 18% कभी भी परसेंट जो रहता है पर एनम होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कैसे निकालना है। आप पहले जाओ, कितना अमाउंट अनपेड है उसके ऊपर लगेगा, सीधी बात। तो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो यही इसी पार्ट पे फिर से एक और क्वेश्चन आ गया। तो ऊपर का पैराग्राफ आपके लिए इररिलेवेंट हो गया, ये जो ऊपर का पैराग्राफ था ये पूरा इररिलेवेंट हो गया, ठीक है। इसमें ऊपर पहले शुरू की बात तो इनरिलेवेंट थी, सिर्फ यहां पे थोड़ा बहुत काम का आया इंटरनल ऑडिट का। और डायरेक्टली फिर आप देखो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस पैराग्राफ पे आ गए, ठीक है। तो अगर आप पहले ही क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपको ध्यान आ जाता है कि ऊपर का जो पार्ट है उसमें बहुत सारी चीज तो ऐसी दी हुई है, कोई काम की नहीं है, और आप वहां पे टाइम सेव कर सकते हो, उसको स्पीड अप कर लो। और काम की चीज अगर आपने स्पीड अप किया, फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो काम की चीज को स्पीड अप नहीं करना है आपको, जो काम की नहीं है, जैसे उन्हें आईआईटी किया है, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं, वो आपको समझ जाता है वैसे, ठीक है। सो ऐसा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि कितना उस पे पेनल्टी लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना आउटस्टैंडिंग था, 42 lakhs, 42 lakhs था। बट उसमें से 12 lakhs जो था ये ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ था, तो इसको माइनस कर दोगे आप, क्योंकि 12 lakhs तो आपका डिफॉल्ट नहीं है ना। वो डिफॉल्ट क्या है, जो आपका पे करना था बट नहीं किया आपने, सो वो डिफॉल्ट है। तो 12 lakhs तो आपको वैसे ही अलाउड था। वैसे ही 3 lakhs जो है ये भी अलाउड था क्योंकि डिस्प्यूट था। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो 42 में से 12 गया 30, 30 में से 3 गया, जैसे 3 गया तो आ जाएगा आपका 27, 27 में अब आपको 15% का सॉरी 15 नहीं 18% का ब्याज लगेगा। तो 18% का ब्याज जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आपको देखना है कब पे करना चाहिए था और कब पे हुआ, कब पे करना चाहिए था ये पर्टिकुलर अमाउंट। सो इट शुड हैव बीन पेड, आपको दिया है 30 सितंबर, क्योंकि 31 अगस्त को डिक्लेयर हुआ था, 30 डेज के अंदर पे हो जाना चाहिए, 30 सितंबर तक के पे हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। सो 30 सितंबर से कब तक के? 12 दिसंबर, 12 दिसंबर दिन काउंट कर लो। सितंबर कंप्लीट हो गया था, अक्टूबर के 31 दिन हो गए, फिर नवंबर के 30 दिन हो गए और 12 दिन हो गए दिसंबर के।
तो टोटल कितने दिन का हो गया डिफॉल्ट? 73 डेज का। इसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट जो भी आएगा आपका, तो आपका अमाउंट आना चाहिए 27 इंटू 18% इंटू कितना आया था 73 डिवाइडेड बाय 365। जो भी आपका आंसर आ रहा है दैट विल बी दी आंसर। तो आपका आंसर जो भी आ रहा है आप एक बार ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर लग सकता है लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर हर इसमें ले जाना चाहिए आपने, ठीक है। कहीं भी लग सकता है, लॉ में भी लग सकता है, डिविडेंड वाले टॉपिक में तो लग ही सकता है, ठीक है। तो सीए स्टूडेंट वही होता है जो लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर लेके जाए। और अब आपके पास एक रीजन भी है, कैलकुलेटर लेके जाओ, बेटर है, टाइम बचेगा, ठीक है। तो इवन फॉर लॉ आपको कैलकुलेटर ले जाना चाहिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी आप उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करता हूं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को और भी चीजें डिस्कस करना है। तो इसमें भी पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ लेंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चंस देख के आपको अंदाज लग जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको ये जमा था या नहीं जमा था? अगर आप कुछ रिप्लाई करना चाहें तो चैट बॉक्स में कर सकते हैं, मुझे दिख रहे हैं आपके चैट। तो मैं YouTube की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मीटिंग की बात कर रहा हूँ। तो मीटिंग में चैट्स दिख रहे हैं मुझे। तो अगर आपको कुछ लगता है कि मैं ये वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करूं तो अल्टीमेटली आप पूछ सकते हैं, आपका ये राइट है। नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन अगर बाद में टाइम बचता है तो वी विल सर्टेनली डिस्कस द क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा आप बोले, ठीक है। मुझे YouTube के वैसे चैट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी एक सेकेंड। हाँ, ऑफ कोर्स वहां पे भी कोई चैट्स तो नहीं आए हैं, बट कमेंट जरूर दिख रहे हैं चलिए, थैंक यू फॉर दी कमेंट्स। हाँ, सो लेट्स बिगिन, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आओ, आगे के क्वेश्चन करवा दीजिए। यस, देखते हैं, गो अहेड। चलिए, सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ध्यान रखो, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, देन यू शुड रीड द केस स्टडी। इससे क्या होगा, आपका जो केस स्टडी पढ़ने का तरीका है, नजरिया है, अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप आपको बदल जाएगी पूरी जो कहानी है वो बदल जाएगी कि क्या करना है आपको। पहले आपके मन में क्वेश्चन आ गया क्या करना है, फिर आप आंसर ढूंढने के हिसाब से उसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप पूरे इवन ऑप्शंस पढ़ लो, ऑप्शंस भी पढ़ लिए तो और आसानी से आप कर सकोगे। तो आपको 15 मिनट पहले मिलता है, केस स्टडी पढ़ने के बदले क्वेश्चंस पढ़ डालो, ठीक है। केस स्टडी बाद में पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने केस स्टडी से चालू किया 15 मिनट ऐसे ही खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र हो गया। बाकी जो एमसीक्यूज है बाकी सब चिल्लर रहेंगे। आपको जो अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, बाकी के सब जो एमसीक्यूज है बिल्कुल चिल्लर लगेंगे, कुछ भी उसमें फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है, एकदम ही चिल्लर, ठीक है। अगर आप खुद ही देखोगे तो आपको समझ रहा है, जैसे ऊपर से देख के ही समझ जाएगा कि अंडर राइटिंग कमीशन का आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कब डिलीवर करना पड़ता है रजिस्ट्रार को, प्रोस्पेक्टस के साथ करना पड़ता है। तो आप देख लो उसमें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विद द प्रोस्पेक्टस। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। सो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस है बहुत आसान हो जाएंगे बाकी के, ठीक है। जैसे यहां बोला है पृथ्वी लिमिटेड ये डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स देना चाहती है, तो दे ही नहीं सकते, आपको पता है। तो कैन नॉट इशू, सीधा सीधा कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स, आपको पता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ सेक्शंस याद रहे जरूरी नहीं, तो आपको जरूरी नहीं कि अरे सेक्शन 72 है क्या, तो ये सब की जरूरत ही नहीं है, कितना आसान है ना। द अल्टीमेट थिंग इज योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 100% आपके पास होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा, एमसीक्यूज तो ठीक है, एमसीक्यूज छोड़ने का नहीं, एक भी नहीं। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा, पेपर छोड़ने का नहीं। देखो क्या होता है ना, पहली चीज तो पढ़ना 100%। जब आप अभी जब आप जाओगे एग्जाम देने, 100% पढ़ाई होना, रिवीजन होना। 2 दिन है, 2 दिन में होता है पूरा पेपर।
पूरा पेपर रिवाइज होता है, पूरा पेपर, इवन सी कैटेगरी क्वेश्चंस। अब कुछ सी कैटेगरी नहीं रहा, सब ए बी सी सब इंपॉर्टेंट हो गए अब, ठीक है। वैसे अल्टीमेटली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है हर चीज इंपॉर्टेंट है। सीए एग्जाम से ना होता क्या है ना, सीए एग्जाम में हम पढ़ते हैं कुछ, आता कुछ और है, क्योंकि हमने कुछ छोड़ के गए थे। छोड़ के जाओ मत ना, छोड़ के नहीं जाओगे तो कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं कि भाई जो ऐसा पूछ लिया जो हमने नहीं पढ़ा था। तो भले ही आप ऊपर ऊपर पढ़ो, जो सी कैटेगरी है जो एकदम कभी नहीं पूछे जाते, ऊपर ऊपर देखो, लेकिन देखना जरूरी है, ठीक है। देखोगे तभी तो याद रहेंगे। तो पहली चीज आप पढ़ो पूरा, दूसरी चीज लिखो पूरा। 100% पेपर सॉल्व करो, पास होना 100% है। पास होना छोड़ो, 60 मार्क्स 100% है अगर आप 100% पेपर सॉल्व करते हैं तो। सोच के देखो, आप अगर 80 मार्क्स का सॉल्व करते हैं, 80 मार्क्स का, तो कितना मिलेगा? तो 50% मिलते हैं तो 40 पे आएंगे। 100 का करते हो, 50% मिलते हैं तो 50 पे आएंगे। तो कुछ नहीं तो भी कुछ तो आएगा, कहीं कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। 100% सॉल्व करो। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बाद में क्वेश्चंस और डिस्कस करता हूं। मैंने जैसा आपको बोला था कि वी विल डिस्कस दी पैटर्न और सब चीजें मैं साथ साथ आपको बताऊंगा व्हाइल डिस्कसिंग दी क्वेश्चंस। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। पहली चीज, टाइम मैनेज करना इम्पॉसिबल चीज है। नो वन कैन मैनेज द टाइम। टाइम तो चलते रहेगा। क्या मैनेज करना पड़ता है? यू शुड मैनेज योरसेल्फ। खुद को मैनेज करना है। तो आप खुद को मैनेज कैसे करोगे? आपको यह ध्यान रखना है कि भाई आखिरी टाइम पे अगर टाइम कम पड़ रहा है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। प्लान बी। तो प्लान ए तो रहेगा ही हमेशा, प्लान बी अगर टाइम नहीं पूरा तो क्या करना। समझो आपको 2 क्वेश्चन लिखना है और टाइम बचा है सिर्फ 5 मिनट। आपको पता है आप सिर्फ एक क्वेश्चन लिख सकते हैं 5 मिनट में। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपको पता है आप सिर्फ एक क्वेश्चन लिख सकते हैं 5 मिनट में, लेकिन 2 क्वेश्चन बचे आपके 5-5 मार्क के, 10 मार्क के क्वेश्चन बचे हैं। अब आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज, आप दोनों क्वेश्चंस को कैसे तो भी ट्राई करें और खत्म करें, भले आप उसको शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखें। दूसरा, आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखें। तो क्या ऑप्शन आप उठाना चाहेंगे? तो आपको क्या लग रहा है, क्या लगाएं, क्या आप ऑप्शन उठाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि सर जितना लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, पर यह गलत तरीका है। देखो, 2 क्वेश्चन 5 मार्क के, आपने अगर पूरा का पूरा अच्छा भी लिखा तो कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 4 मार्क, 4.5 मार्क, या फिर कितना मिलेगा? या तो 5 मिलेगा, और क्या मिलेगा? लेकिन 2 क्वेश्चन आधे करो, सिर्फ प्रोविजन लिख के आओ और कंक्लूजन लिख के आओ, और कुछ भी मत, फैक्ट्स मत लिखो, एनालिसिस मत लिखो, प्रोविजन लिखो और कंक्लूजन लिखो। आपको अगर 5 में से 3 भी मिलते हैं तो आपको 6 मार्क मिलेंगे। 2 में 3 मिले तो 6 मार्क मिलेंगे। एक करोगे, 5 में से मैक्सिमम 5 मिलेंगे। 2 आप सिर्फ प्रोविजन और कंक्लूजन लिख के आओगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, सुरभि का बोलना है कि वी विल अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन विच आई कैन डू थॉरोली। द आंसर इज नो। आपको 2 क्वेश्चन 100% सॉल्व करना है, ये ध्यान रखो, वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन सीए एग्जाम्स। 100% सॉल्व करो हर पेपर में। मैं सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा, इट इज रिलेवेंट फॉर ऑल द पेपर्स। यू शुड सॉल्व 100% क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको अगर 3 मिल गए, सिर्फ 3 भी मिले या 2.5 भी मिले तो विन विन है ना। आपको उधर भी 5 मिले होते मैक्सिमम, यहां पे 5 मिलेंगे मिनिमम। अगर आपने थोड़ा और अच्छा लिख लिया, दोनों में 3-3 मिल गए, 6 मिल गए, एक मार्क से फर्क पड़ता है सीए एग्जाम में, एक मार्क से। तो ध्यान रखो, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब चीजें आपको साथ में लेके चलना है। तो यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो आप सिर्फ प्रोविजन और कंक्लूजन लिखो, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये गैम्बल हो गया। वैसे तो ट्राई करो पूरी चीज अच्छे से हो सके। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे होना चाहिए। पहली चीज, आजकल अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस जो है वही क्वेश्चन आपको कम मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पहले 4 मार्क या 5 मार्क को आते थे इन द ओल्ड कोर्स, इन द न्यू कोर्स यू विल सी दैट सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। तो 3 मार्क को पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस। सो इन सच केस क्या करना है आपको उसमें जितने भी फैक्ट्स वाले पार्ट है हटा देना है। फैक्ट्स लिखना ही नहीं आपने। क्या लिखोगे आप? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में आप लिख दोगे सेक्शन नंबर अगर याद है तो,
केस लॉ अगर याद है तो। ऑफ कोर्स कंपनी लॉ के आपको सेक्शन नंबर्स याद हो जाते हैं पढ़ पढ़ के, तो कंपनी लॉ में दिक्कत नहीं जाती। बाकी के लॉ में आपको थोड़ा दिक्कत जाती है सेक्शन नंबर याद रखने का, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वहां याद नहीं रहेंगे, गिनती के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो याद रहेंगे, 138 हो गया, 128 हो गया, ऐसे सेक्शंस याद होते हैं। तो सेक्शंस की फिक्र मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा सेक्शंस नहीं लिखना, अगर याद है तो जरूर लिखना, लेकिन गलत नहीं लिखना, ठीक है, याद है तो जरूर लिखो। अब अगर आप सेक्शंस लिखते हैं एप्लीकेबिलिटी में तो वही समझ गया, या अगर सेक्शंस नहीं भी लिखे, आपको समझ गया किस चीज के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप वो चीज वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख दोगे जो भी टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी, इट शुड बी शॉर्ट। यहाँ एप्लीकेबिलिटी में आपको ऐसा नहीं 2 लाइन 3 लाइन लिख रहे, सिर्फ शॉर्ट में लिखना है एप्लीकेबिलिटी, यानी एप्लीकेबिलिटी देख के सिर्फ ये समझ जाना चाहिए व्हाट इज द टॉपिक, कौन से टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन है, ये समझ गया। देखो आपको क्या करना है ना, आपको जो पेपर चेकर है उसके मानसिकता से खेलना है, उसको आप जानते नहीं पर आप उसकी साइकोलॉजी से खेल सकते हैं। क्या करना है आपको, आपको अल्टीमेटली उसको जानते नहीं हो आप, पर आपको ये पता है कि वो या तो कोई सीए होगा, सीए चेक करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत डॉक्टरेट वगैरह और जिनके पास टाइम नहीं होता एक्चुअली, लेकिन उन लोग पेपर चेक करने के लिए लिए हैं, उन्होंने उनको दिया गया है। अब जो पेपर चेक करने वाला है वो दिन भर बेचारा बिजी रहता है, समझो मेरे को दे दिए, मैं ले नहीं सकता फ्रैंकली बता दूं, क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विद कोचिंग तो मैं नहीं ले सकता, बट फिर भी समझो मेरे को दिया है, मैं दिन भर तो अपने काम करता हूं। अब मैं कब बैठूंगा पेपर चेक करने, शाम को या रात को, पूरा काम होने के बाद रात को बैठूंगा मैं। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, घुमाते हैं, बच्चे वही चीज घुमा फिरा के लिख रहे हैं, अपने खुद का नाम बता रहे 4 तरीके से घुमा फिरा के, यानी कोई भी कंसेप्ट है आप वही चीज 4 बार लिख रहे हैं घुमा के, उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले, टू द पॉइंट आंसर होना, उसमें उल्टा मार्क्स कम होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति बेचारा दिन भर मेहनत करके शाम को पेपर लेके बैठा, उसको आपने और परेशान किया, एक पेपर चेक करने को 20 मिनट लगता है, 15 से 20 मिनट अगर अच्छे से करे तो। अब उसका टाइम जा रहा है, सोचो सब लोगों ने ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिखा है, लेकिन आपका पेपर ऐसा है जो देखते से उसको समझ गया अरे कितना अच्छा पेपर है, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपका पेपर देखते से समझ गया कि किस पॉइंट पे क्वेश्चन है, क्या प्रोविजन है, क्या कंक्लूजन है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करो, लिख के रखो, ये चीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर क्या होगा हाईलाइट करने से, हाईलाइट करना ही है। सीधा सीधा वही हाईलाइट वाले वर्ड के ऊपर ध्यान जाता है, जब व्यक्ति पेपर चेक करता है ना, वही जितना हाईलाइट किया उतने पे ध्यान जाता है। प्रोविजंस पे ध्यान जाएगा। अगर आपने लिख दिया है सेक्शन, जैसे कोई भी पहले ही क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन, OEMR लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ PQR लिमिटेड डिसाइड्स टू गिव लोन ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख का लोन देना चाह रही है, किसको, टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो ह्यूमन रिसोर्स HR मैनेजर श्याम कुमार, who does not fall in the category of key managerial person and draws a salary of 40,000। इतना पढ़ के आपको समझ गया होगा क्वेश्चन किस पॉइंट के ऊपर है, तो आपको यहीं से समझ जाएगा क्वेश्चन इज ऑन सेक्शन नंबर 67। ये तो सेक्शन भी याद होगा आपको, लाइन से सब बायबैक वगैरह 67, 68, 69, 70 सब याद लाइन से, और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनफैक्ट 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब याद हो जाते हैं सेक्शंस, अगर आपने ऑफ कोर्स साथ साथ में अच्छे से पढ़ा है तो। सो सेक्शन 67 पे क्वेश्चन है, आपको समझ गया कि क्या कंपनी लोन दे सकती है। आपको एप्लीकेबिलिटी में सीधा लिख दो, एप्लीकेबिलिटी में लिख दो कि प्रोहिबिशन ऑन गिविंग लोन बाय अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी दे सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं दे सकती, ठीक है, टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, सेक्शन 67। आपने एप्लीकेबिलिटी लिख दी, आधी जंग आप जीत चुके हो, समझ गया आगे वाले को कि इसको पता है कि क्या लिखना है। हाँ देखो पवन का एक आंसर भी आ गया, 6 मंथ की सैलरी तक दिया जा सकता है, पर आपने एक पॉइंट और मिस कर दिया यहाँ पे, ये आंसर गलत है, इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, कुछ भी नहीं मिलेंगे। ये आंसर गलत क्यों है, गलत इसीलिए है क्योंकि आपने पूरा अभी पढ़ा नहीं, आगे पढ़ो। टू बाय 500 पार्टली पेड अप शेयर्स ऑफ 1000 ईच इन OEMR लिमिटेड,
एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ कंपनीज डिसीजन। एक पॉइंट आपने लिखा सही है पर इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 6 मार्क का क्वेश्चन है बट नहीं मिलेंगे। आपको पूरा उसको समझाना कैसे है, एप्लीकेबिलिटी लिख दिया आपने सेक्शन 67, सेक्शन याद नहीं है तो सिर्फ ये लिखो प्रोहिबिशन ऑन गिविंग लोन्स फॉर परचेसिंग इट्स ओन शेयर्स, ठीक है, ये लिखो चलेगा, सेक्शन नहीं लिखे चलेगा। डायरेक्टली आप आ जाओगे प्रोविजंस पे। प्रोविजन में लिखना पड़ेगा पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव लोन्स टू दी डायरेक्टर्स, की मैनेजरल पर्संस वगैरह वगैरह, यानी किसी को भी नहीं, पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव लोन्स टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, ये लिखना पड़ेगा, किसी को भी नहीं। फिर आपको उसका एक्सेप्शन लिखना है, बट दे सकती हैं किसको, जो एम्प्लॉइज है उनको। सिर्फ एम्प्लॉय वाला पॉइंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 67 बहुत बड़ा है, उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप पूरा लिखोगे तो वैसे ही पूरा आपका टाइम खत्म हो जाएगा और 3 पेज लग जाएंगे पूरा लिखने जाओ तो। सिर्फ जितने पॉइंट इस क्वेश्चन में काम के हैं उतना ही लिखना है आपको। तो किसको दिया जा सकता है, एम्प्लॉय हु इज नॉट अ केएमपी, केएमपी नहीं होना चाहिए, की मैनेजरल पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना दिया जा सकता है, 6 मंथ सैलरी, तो ये तो सही है, पर किसके लिए दिया जा सकता है, टू बाय फुल्ली पेड अप शेयर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इनफैक्ट पहले भी आ चुका है, मेन एग्जाम में भी आ चुका है, एमटीपीज एंड आरटीपीज में भी आ चुका है। फुल्ली पेड अप शेयर्स, यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो पार्टली पेड अप शेयर्स है तो यहां पे तो नहीं दिया जा सकता। तो आपको दोनों पॉइंट लेकिन आइडेंटिफाई करना है। अगर आप सिर्फ ये पॉइंट लिखोगे कि पार्टली पेड शेयर है तो नहीं दिया जा सकता, ये भी गलत है, गलत यानी पूरा गलत नहीं है, इस पे आपको 3 मार्क मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा 3 मार्क एम नहीं है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। आपने दोनों चीज आइडेंटिफाई करना है, दोनों चीज लिखना है। पहली चीज मैक्सिमम लोन कितना दिया जा सकता है, तो 40,000 का आपका टोटल अमाउंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 6 महीने की सैलरी, तो उतना मैक्सिमम लोन होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट, बट ये भी नहीं दिया जा सकता बिकॉज ये है पार्टली पेड शेयर्स, ठीक है, तो ये पार्टली पेड होने के कारण ये भी नहीं दिया जा सकता, तो ऐसा है, ठीक है। देन ये दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे लिखना है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया। इसके बाद आप क्या लिखोगे, पहले आपने लिखा एप्लीकेबिलिटी, दूसरी चीज आप क्या लिखोगे, दूसरी चीज आप लिखोगे प्रोविजंस। प्रोविजन में आपको लिखना है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, कि पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव लोन और एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू परचेज इट्स ओन शेयर्स और टू परचेज शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, बट किया जा सकता है, इट कैन बी गिवन। पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज, इवन प्रोविजंस पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज यानी टू द पॉइंट दिखेगा, आप खुद ही रिपीटेशन नहीं करोगे क्योंकि पॉइंट वाइज है ना, आप खुद ही पॉइंट को वापस नहीं लिखोगे घुमा फिरा के। जब आप पैराग्राफ वाइज लिखते हो ना तब आप घुमा फिरा के लिखते हो, तो आप पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स के हिसाब से एक एक पॉइंट क्लियर करते जाओ। तो पहली चीज, पब्लिक कंपनी शेयर्स खरीदने को पैसा नहीं दे सकती, लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती। दूसरी चीज, दे सकती है टू द एम्प्लॉइज हु शुड नॉट बी अ की मैनेजरल पर्सन, ये लिखना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम अप टू his 6 month salary and that too for purchasing the fully paid up shares। ये हो गया आपका दूसरा प्रोविजन, बात खत्म हो गई, 2 प्रोविजन आ गए आपके, ठीक है। डायरेक्टली अब आ जाएगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में 2 पॉइंट, कंक्लूड करते टाइम आप ये लिखोगे, जैसे आपने कोई मूवीज देखा होगा, गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, तो वो नतीजा क्या है वो लिखना है। बाय गोइंग थ्रू द अबव सेड प्रोविजंस एंड द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस, फैक्ट्स मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो। आपको लगा होगा सर 6 मार्क का क्वेश्चन है, मत लिखो, आगे कहीं आपको ऐसा झोल मिलेगा जहां पे 3 मार्क का क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा होगा। फैक्ट्स मत लिखो, डायरेक्ट एनालिसिस लिखो अगर आपको जरूरत लगती है तो। एनालिसिस, एनालिसिस में आप क्या लिखोगे, एनालिसिस में फैक्ट्स के साथ में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली एनालिसिस पे जाना है। अगर एनालिसिस की जरूरत है तो यहां पे जरूरत है तो यहां पे आप लिखोगे एनालिसिस कि यहां पे पार्टली पेड अप शेयर्स है, ठीक है। फैक्ट्स रिपीट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो ऐसा है, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से इसको प्रोसीड करेंगे, एंड देन डायरेक्टली कंक्लूजन। इंपॉर्टेंट चीज लाइन अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, पार्टली पेड अंडरलाइन, पार्टली पेड जहां लिखा है अंडरलाइन करो उसको, दैट इज इंपॉर्टेंट। 6 मंथ सैलरी अंडरलाइन करो, ठीक है।
नॉट अ की मैनेजर पर्सन वगैरह को अब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हें क्लियरली वही बताया है। जो उन्होंने नहीं बताया है दैट शुड बी अंडरलाइन, तो वो आपको करना है, नहीं तो आप पूरा ही अंडरलाइन कर लोगे। तो पूरा अंडरलाइन नहीं करना। कितना अंडरलाइन करोगे आप? जितना जरूरी है। पूरा कर दोगे तो फिर इंपॉर्टेंस का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा। आप अगर इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंस बताना पड़ता है। तो अगर आप दिखाओगे नहीं ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट बता दोगे तो इंपॉर्टेंट ही नहीं रह जाती चीज। होता है ना, आप कभी अपने फ्रेंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रोज रोज उसको फोन करते हैं, रोज रोज बातें करते हैं, एक दिन फोन नहीं करोगे तो बोलेंगे तुम्हारी लाइफ में तो मेरी जरूरत ही नहीं रही, ऐसा हो जाएगा। ऐसा करते हैं लोग, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देना है, हर चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपने, उतनी ही चीज को इंपॉर्टेंस देना है जिसको इंपॉर्टेंस की जरूरत है, ठीक है? हाँ, एक गुंजन का क्वेश्चन है, सर फैक्ट्स एंड एनालिसिस दोनों लिखना है? फैक्ट्स लिखना ही नहीं है मेरे दोस्त, फैक्ट्स लिखना ही नहीं है, फैक्ट्स लिखो ही मत, ठीक है? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप फैक्ट्स लिखो। आप खुद देखो, ये जो केस स्टडी है ना पहले एमसीक्यू वाली, वही पढ़ने में आपका कितना टाइम जाएगा, खुद सोच के देखो, पढ़ के देखो, 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक बार में हो जाएगा, बट अगर नहीं तो बड़ा दिक्कत जाएगा। आपको लग रहा होगा सर एमसीक्यू में तो टाइम बचता है, कुछ नहीं बचने वाला अब, ठीक है? तो एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं आपको? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जो केस स्टडीज है वैसे, ठीक है? ये इंटरनेशनल पैटर्न है, इंटरनेशनल जो एग्जाम्स होती है ना उसमें ऐसे ही पैटर्न चलते हैं। तो धीरे से अपन भी उसी तरफ जा रहे हैं और दैट इज गुड, बहुत अच्छी चीज है। रटने के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना है अपने को समझने पे फोकस करना है, ठीक है? तो ऐसा है, तो फैक्ट्स बिल्कुल नहीं लिखना है। चलिए, और कोई आपके डाउट्स हैं? तो मैंने आपको बताया, ध्यान रखो, अंडरलाइन करना, किस पैटर्न में लिखना है? एप्लीकेबिलिटी, प्रोविजंस, एनालिसिस, कंक्लूजन, ठीक है? तो आप इस पैटर्न में इसको लिखेंगे। मैं आपको लगे तो लिख के दे देता हूं, और ये अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे आप? पहले, सबसे पहले लिखोगे एप्लीकेबिलिटी, ये कितना होना चाहिए? बस एक लाइन, खत्म हो गई बात। फिर प्रोविजंस, प्रोविजन में क्या लिखोगे? प्रोविजन में कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रोविजन में आप फैक्ट्स लिख देते हैं कि एचआर मैनेजर नहीं है, या एचआर मैनेजर है, की मैनेजर पर्सन नहीं है। वो नहीं आना है वहां पे, वहां सिर्फ लिखना है टू द पॉइंट, क्या लॉ बोल रहा है, कानून क्या बोल रहा है। यहां कहीं भी फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं आएंगे, आपका केस में जो लिखा है कहीं उसका नाम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। यहां प्योरली प्रोविजंस लिखना है कि पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव शेयर्स, लोन, सॉरी लोन, ठीक है? पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव लोन टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, ये पहला पॉइंट हो गया। बट दिया जा सकता है टू दी एम्प्लॉइज। हम केस की बात नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन में दिया है उसकी बात ही नहीं आई अभी तक। उसकी बात कहां आएगी? जब आप एनालिसिस लिखोगे। तो आपका जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन थोड़ा डीप रहेगा। प्रोविजन में कानून क्या बोल रहा है एकदम अच्छे से लिख डालो, विदाउट रिपीटेशन। पॉइंट वाइज लिखो, देखो मैंने पॉइंट वाइज लिखा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है? 2-3 पॉइंट में खत्म हो जाता है। एंड देन एनालिसिस, एनालिसिस में आपको फिर अब यहां लिखना है कि ये ऐसा ऐसा है, इसको इतनी तनख्वाह मिल रही है, वो अगर आपको जरूरत है तो उसमें भी जितना जरूरी है उतना ही, नो रिपीटेशंस। एंड डायरेक्टली आप आ जाओगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन यहाँ पे 2 होंगे, वैसे आप क्लियरली बोल सकते नहीं दिया जा सकता है, तो एनालिसिस में आप डिटेल लिख दोगे तो कंक्लूजन और शॉर्ट हो जाएगा, या फिर कंक्लूजन में आप डिटेल लिख सकते हैं। हाँ, अब दीपक का क्वेश्चन है, एनालिसिस में कैसे लिखते हैं? मींस कंपेयर करना क्या फैक्ट्स एंड प्रोविजंस को? एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। आपको कंपेयर करना है कि फैक्ट्स में क्या बताया है और अपन ने प्रोविजन जो बोले वो दोनों को साथ में रखे तो क्या एनालिसिस निकल के आता है, एनालिसिस ऑफ द केस, ठीक है? तो आपने ही सवाल किया, आपने ही जवाब भी दे दिया, दैट इज द एग्जैक्टली रिक्वायर्ड थिंग। आपको क्या चाहिए? तो आपको ये लिखना है कि क्या फैक्ट्स है और क्या प्रोविजन है, ये दोनों का एनालिसिस, दोनों को साथ में रख के आपको क्या समझ रहा है, और कंक्लूजन में फाइनल आंसर। कंक्लूजन भी अंडरलाइन किया जाएगा, कैन नॉट बी गिवन, लोन नॉट बी गिवन, कैन नॉट बी गिवन ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजंस,
ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, नाउ और कोई सवाल? थोड़ा मैं आज मेरे पास सिस्टम नहीं है इसीलिए थोड़ा आपको दिक्कत जा रही होगी, 2-3 बीच में कॉल्स आ गए, तो फिर भी मेरे ख्याल से आपको समझ रहा होगा। अल्टीमेटली कोई आपको क्वेश्चन है, कोई शक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ चीज आपको नहीं समझे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट? मैं और कमेंट्स देख लेता हूं, यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स आए हैं क्या? हाँ, एक यूट्यूब पे कमेंट है शर्वरी का, सर डू लेंथ ऑफ आंसर अफेक्ट आवर मार्क्स? द आंसर इज नो। लेंथ ऑफ आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किससे फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है कंटेंट से। कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, ओनली 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, नो लेंथ ऑफ आंसर। कितना बड़ा आप आंसर लिख रहे हैं दैट इज ऑफ नो यूज। अगर आप घुमा फिरा के लिख रहे हैं, बहुत बड़ा लिख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली किस चीज से फर्क पड़ेगा आपको? तो सिर्फ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, दो ही चीज है, दो चीज इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। तो कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। और कोई क्वेश्चंस? हाँ, कृतिका का एक क्वेश्चन है, सर एग्जाम प्रेशर रहेगा वो टाइम पे, तो हाउ टू हैंडल द प्रेशर व्हाइल राइटिंग? प्रेशर आपको रहना नहीं चाहिए। प्रेशर तब रहता है जब आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया है। आपको अभी टाइम है, अभी आपने पूरा तैयारी कर लेना है। प्रिपेयर्ड रहोगे कोई प्रेशर नहीं आता। प्रेशर कब आता है? जब हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तब हमको लगता है यार ये लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तब हमको सवाल आते हैं। अगर आप अभी से पूरी चीज रिवाइज करते हैं, पूरी चीज पढ़ते हैं, एंड यकीन मानो अभी भी वक्त है, तो मैं खुद बता रहा हूं ये चीज, आप लोग मेरे को जानते हैं ज्यादातर लोग, तो मैं जो हूं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि जो प्रॉब्लम्स जाती है बच्चों को, वो इसीलिए जाती है क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं। अगर आपने पढ़ा है अभी और रिवाइज किया है प्रॉपरली, तो 100% आपको एग्जाम में प्रेशर नहीं रहेगा, या कम रहेगा। इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि आप नहीं लिख पाओ। उतना प्रेशर कब आता है? जब आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी है ना, तो आपका प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी चीज, प्रेशर अगर आ रहा है तो हैंडल कैसे करना? मैं जैसा बताया आपको कि आप वो चीज मत पढ़ो, वो चीज से शुरुआत मत करो जो चीज आपको डिफिकल्ट लगे। आप उस चीज से चालू करो जो कि आसान रहे, जो इजी लगती है आपको। तो आपको पहले पेपर मिल जाता है, आप पहले ही पेपर को छान लो, पहले पेपर को पूरे क्वेश्चंस पढ़ लो, उस पॉइंट से क्लियरली पढ़ाई लिखना चालू करो, जो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये जो मैंने बताया ना, ये यूज करो कि आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। पैटर्न ऐसा लिखो, अंडरलाइन करो। अगर आप पैटर्न लिखते हैं और अंडरलाइन करते हैं, तो आपका शुरू के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे जाएंगे, और आगे तो जो एग्जामिनर है, आप उसकी मानसिकता से खेल गए, आपने उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ला लिया। आपका अब वो पूरा क्वेश्चन पेपर देखेगा ही नहीं, पूरा आंसर पेपर देखेगा ही नहीं। वो देखेगा जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आपने अंडरलाइन किया है, बस उतना देखेगा वो, और वो खुशी खुशी आपको मार्क्स देता चला जाएगा। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिख लो आप, मैं ये नहीं बोल रहा बाद में अच्छा मत लिखना नहीं तो आप बोलोगे सर बाद में भी लिखो, बट अल्टीमेटली वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखो। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर सेक्शंस लिखने से इफेक्ट पड़ता है मार्किंग पे? एग्जैक्टली पड़ता है 100%, पर बहुत नहीं पड़ता। पड़ता जरूर है, आधे मार्क का फर्क पड़ सकता है, बट वो भी बहुत नहीं पड़ता। अगर आपने ये सब चीजें की है ना, तो वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कंटेंट पूरा दिया है बिना रिपीटेशन के, वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सेक्शन लिखने से मार्क्स भी नहीं मिलते, ये भी ध्यान रखो। आपने अगर ये वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेक्शन 67 लिखा, लेकिन कंटेंट ही पूरा गड़बड़ हो गया, क्या मतलब रहा? सो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको मेन कंटेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, और सेक्शन मैंने जैसा बताया, अगर याद है तो लिखो, नहीं है तो बिल्कुल मत लिखो, उसको छेड़ना नहीं। ठीक है, तो जब याद है तो लिखो, नहीं याद है बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसको भूल जाओ। ठीक है, कंटेंट लिखो, प्रोविजन लिखो, बात खत्म हो गई, एनालिसिस, कंक्लूजन। ठीक है, हाँ, और क्वेश्चंस आए हैं प्रेम का क्वेश्चन है, सर प्रोविजन में सेक्शन लिखना है अगर सेक्शन नहीं लिखा तो मार्क्स में इफेक्ट आएगा क्या? सेम क्वेश्चन है जो HK ने बोला है, मेरे ख्याल से हर्ष होगा, HK हर्ष। हाँ, और प्रेम का बोलना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और सर अंडरलाइन किसको करना, प्रोविजन या एप्लीकेबिलिटी पर? एप्लीकेबिलिटी मत करो अंडरलाइन, उसमें अगर लगता है तो करो, बट वो तो एक ही लाइन है ना, उसमें तो आपको जरूरत नहीं है।
प्रोविजन में क्या, जैसे कि पार्टली पेड, फुल्ली पेड, ये चीजें जो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन है। हाँ धीरज हूं बोल रहे हैं, ठीक है धीरज, धीरज रखो। सो ऐसा है। हाँ तो प्रेम का जो क्वेश्चन है, अंडरलाइन किसको करना है, एप्लीकेबिलिटी पर नहीं, आपको प्रोविजन पर करना है, प्रोविजन और कंक्लूजन। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलेगा क्वेश्चन 1A में कि लोन कैन नॉट बी गिवन, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टली पेड है पहली चीज, दूसरी सैलरी से ज्यादा दे रहे हो आप, सैलरी जो है वो 40,000 की है, ठीक है, तो 40,000 के हिसाब से 2,40,000 रुपए होते हैं मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं दे सकते, तो यहाँ पे वो 4 लाख देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। हाँ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही आप इंटरेक्टिव रखो, आपको जो जो सवाल है सवाल पूछते जाओ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस करके बता रहा हूं, बट मोर इंपॉर्टेंट क्या है, आपके सवाल क्लियर होना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको बता दूंगा, इनफैक्ट आपको आंसर्स मिल जाएंगे सजेस्टेड, बट अल्टीमेटली जो डाउट्स है ना वो क्लियर कर लो अभी। दूसरा क्वेश्चन है अमेय का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर कितने टाइम पहले मिलता है, आई थिंक 15 मिनट्स का अभी टाइम है, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट पहले मिलता है, ठीक है। हाँ फिर धीरज हूं मैं, हाँ तो धीरज ठीक है। रुचि का एक क्वेश्चन है, सर अप्रोक्सीमेटली कितने बजे कितने बार रिवीजन करके जाना चाहिए। वैसे अगर आप मेरे को अभी पूछो तो अभी तो टाइम कम बचा है, पर फिर भी 3 बार रिवीजन इंपॉर्टेंट है, 3 बार, कम से कम 3 बार, ठीक है। वो अपने पे डिपेंड करता है कि एक एग्जाम में 3 बार कर लें या एक एक एग्जाम करके 3 बार करें तो अपने को तारीख पे तारीख नहीं जाना है, एग्जाम पे एग्जाम नहीं जाना है, अपने को क्या करना है, अपने को एक ही बार में क्लियर करना है, तो 3 बार पढ़ के जाना है, ठीक है। एग्जाम के टाइम 3 बार नहीं होगा, इम्पॉसिबल, एक बार होगा। लेकिन आप जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं, अभी लगाया आपने टेस्ट सीरीज में लिखे, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लगाओ कुछ भी करो लिखो, घर पे तो लिखते नहीं अपन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगर नहीं लगाए होंगे अभी घर पे एमटीपी सॉल्व करो, आरटीपी सॉल्व करो, अमेंडमेंट्स के पीछे मत भागो, अमेंडमेंट्स कोई क्लास वगैरह में काम नहीं आते, अमेंडमेंट्स के लिए सिर्फ आरटीपी उठा लो, आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स दिए हैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, उस पर भरोसा करते हुए अमेंडमेंट्स बस पढ़ लो, 3-4 पेज के अमेंडमेंट्स होंगे, पढ़ डालो, खत्म होता है। फालतू आप उसके पीछे 2 घंटे की क्लास करोगे किसी की, कोई जरूरत नहीं, मेरी भी मत करो, मत करो, अभी वो वक्त नहीं है। ये अगर 2 महीने पहले होता तो मैं बोलता था करो, बट अब मैं बोलूंगा मत करो। मैं भी अगर अमेंडमेंट क्लास लूंगा तो मत करो, फ्री में लूंगा तो भी मत करो, पढ़ डालो, उससे हो जाएगा। हाँ अगर नहीं समझा है पढ़ के तो फिर आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली देयर इज नो रिक्वायरमेंट। हाँ देन मैं आपको ये बता रहा हूं ना, अंडरलाइन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अंडरलाइन करना ही है। आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप उसको अंडरलाइन करते हैं तो वही चीज ध्यान जाती है। आप खुद देखो, जो चीज आप दिखाना चाहोगे वही चीज आगे वाला देख पाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आगे वाला सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देखे, आपने अंडरलाइन कर दिया, वही नजर जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स बनाओ अगर आपको पता है तो, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जैसी जो चीजें हैं, डायग्राम्स बनाओ। टाइम आप फैक्ट्स में से जो कम कर रहे हो ना, जो फैक्ट्स में अपन कंची मार रहे हैं, उसको आपको यूज करना है ये चीजों में। अंडरलाइन करने के लिए अलग से पेंसिल स्केल लेके नहीं करना है, लिख रहे हैं, लिखते लिखते आप अंडरलाइन कर लेंगे। वही पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन कंपलसरी है, तो उसी पेन से आप अंडरलाइन कर लेंगे लिखते लिखते। आप अगर आखिरी टाइम पे लेके बैठेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। लिखते लिखते अंडरलाइन करो। अंडरलाइन इसको बोलते हैं, अंडरलाइन इसको नहीं बोलते, तो ये भी ध्यान रखो। अंडरलाइन कैसे होती है, तो अंडरलाइन होती है ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि लिखते लिखते काट डाले, तो वो नहीं करना, वो अंडरलाइन नहीं है, उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। हाँ फिर एक क्वेश्चन आया कृतिका का, सर 5-6 बार रिवीजन हो गई है तो पेपर सॉल्व करने में टाइम कितना लगना चाहिए। देखो 3 घंटे का टाइम मजाक में तो दिया नहीं है आपको, 3 घंटे के टाइम में कंप्लीट हो, दैट इज द एम। ज्यादा टाइम बचा के भी क्या करोगे आप, 3 घंटे में कंप्लीट हो ऐसा आपको करना चाहिए बस। और वो तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस किया है, एक बार तो भी पेपर सॉल्व हुआ होना चाहिए। आप सोच के देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज वगैरह देना चाहिए, एमटीपीज देना चाहिए। आपको खुद को ध्यान आता है, जब आप मेन एग्जाम में दोगे आपको ध्यान आएगा, अरे ये एमटीपी में क्वेश्चन आया था और मैंने ये लिख के आया था और गलत किया था, गलती याद आएगी, वो गलती आप वहां नहीं करोगे। टेस्ट जरूर दो, ठीक है।
एमटीपी आरटीपी छान डालो पूरे, वैसे के वैसे क्वेश्चन छपते हैं इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल है उसमें से, वैसे के वैसे क्वेश्चन छपते हैं। ठीक है, आखिरी टाइम पे अपने बुक्स को मत बदलो, बुक्स जो भी आपने उठाए थे वही बुक से पढ़ाई करो। आखिरी टाइम क्या, मैं तो पहले भी नहीं बोलता हूं, आपने जिससे पढ़ा है, जिसकी बुक्स यूज की है उसी से पढ़ाई करो, आखिरी टाइम पे छोड़ो, कभी भी मत बदलो। ट्रस्ट करो अपने टीचर पे, जो भी टीचर होंगे ट्रस्ट करो उनके नोट्स पे, और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको बस वही चीज लो, आखिरी टाइम कोई शॉर्ट नोट्स मत उठाओ नए वाले, जो जो पहले से पढ़े होंगे वो वाले शॉर्ट नोट्स उठाओ। अल्टीमेटली शॉर्ट नोट्स ऐसे वाले उठाओ जो कॉम्प्रिहेंसिव रहे, जो सब चीज कवर करें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक बारीक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स यूज करना है जो कि हर चीज कवर करते हैं 100%। भले ही वो शॉर्ट है बट 100% कवर करते हैं, भले एक वर्ड में लिखा है लेकिन 100% कवर करते हैं। ठीक है, तो वो उठाना है आपको। हाँ, कितने देर पहले पेपर हो जाना चाहिए? मैं बोलूंगा ज्यादा देर पहले नहीं होना चाहिए। 3 घंटे बोला है ना, 2 मिनट पहले हो गया सफिशिएंट है। 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले बहुत हो गया, उससे पहले मत करो, वो करना भी नहीं है आपने। ठीक है, अगर उससे पहले हो रहा है बहुत, 15-20 मिनट पहले हो रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, हाँ पवन, जो दिखता है वही बिकता है, ये मुझे समझा नहीं चलो ठीक है। सर, विल मेकिंग डायग्राम्स अफेक्ट द मार्क्स? 100%, 100% मार्क्स पे फर्क पड़ेगा अगर आपने डायग्राम्स बनाए हैं तो। डायग्राम्स बनाओ जहां जरूरी है, जैसे आपके कोई क्वेश्चन होंगे जिसमें डायग्राम की जरूरत है, आप बनाओ। कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, ये हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स वगैरह टाइप के, इस पे बना सकते हो आप। जिस जिस पे डायग्राम बना सकते बनाओ। ये लास्ट वाला हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, बी वाला कौन सा है, 4th बी। बाजार लिमिटेड called an AGM in order to lay down financial statements of shareholders due to want of quorum। quorum मौजूद नहीं था और इसीलिए मीटिंग कैंसिल हो गई। डायरेक्टर्स बोलते हैं अब हमको ये फाइल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी एजीएम ही नहीं हुई। आपको पता है एनुअल रिटर्न्स फाइल करना ही पड़ता है, कहां से? एजीएम जब होना चाहिए था, अगर एजीएम हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो जब हो जाना चाहिए था। ठीक है, लास्ट डेट, ड्यू डेट ऑफ एजीएम पूरा लिखना है आपको। और कब तक के फाइल करना है आपको? विद इन 60 डेज आपको फाइल कर देना है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना दो, बात खत्म हो गई, देख के समझ गया है। ठीक है, तो एजीएम, लेकिन ध्यान रखो एजीएम जिस दिन हो जाना चाहिए था। ठीक है, ऑन द डेट व्हेन द एजीएम वाज, एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, ऐसा क्लियर लिखो डायग्राम में। ठीक है, एजीएम हेल्ड या सिर्फ एजीएम मत लिखो, क्लियर लिखो। तो द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से फिर आप डंडी बना दो, समय की डंडी, और आप आगे 60 डेज बना दो। बात खत्म हो गई, समझ गया आगे वाले को? मैं अगर चेक करूंगा मेरे को देखते से समझ गया, आपको समझ चुका है कंसेप्ट, बात खत्म हो गई। ऐसे आपको ये सब चीजों में मार्क्स कमाना है। फैक्ट्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां से देख के छापने में कोई मार्क्स मिलते क्या? तो जो लोग बोल रहे हैं फैक्ट्स में लिखो मार्क्स मिलते हैं, तो नहीं। हाँ ऑफ कोर्स मैं भी बोलता था जब ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आते थे, बट मैंने 2-3 साल से, 2-3 बार से, जब से न्यू कोर्स आया तब से जब मैंने पैटर्न देखा हूं, मैंने ये बोलना छोड़ दिया। मैंने स्पेसिफिकली बोला फैक्ट्स हटा दो, फैक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है रिपीट करने की। 3 मार्क को वही क्वेश्चन पूछते हैं जो क्वेश्चन पहले 5 मार्क को आते थे, क्या फैक्ट्स लिखेगा इंसान? लेकिन डायग्राम बना दो, कितना आसान है, कितना टाइम जाता है आपका? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में डायग्राम बन गया और आगे वाले को पूरा खेल डायग्राम से समझ गया। तो ऐसा है, तो आपको खेल समझाना भी नहीं पड़ा, समझ गया उसको। देन और क्वेश्चंस क्या है देख लेता हूं मैं। प्रेम का अगर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चंस में किस चीज को अंडरलाइन करना चाहिए? थ्योरी में भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट मैं बोलूंगा थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं ज्यादा, मुश्किल से 2 क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है, बट मैं जो जितना मेरे को लग रहा है आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा पूछने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें भी लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी होगा, जो क्वेश्चन आएगा उसमें, जैसे कोई भी ड्यूटीज ऑफ एजेंट पूछ लिया, तो नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, तो नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट को अंडरलाइन कर दिया आपने, जो भी होगा। ठीक है, नॉट टू मिक्स गुड्स, नॉट टू मिक्स अंडरलाइन कर दिए, फिर आगे लिखोगे विथ हिज ओन गुड्स, वो सब अंडरलाइन नहीं करना, नॉट टू मिक्स, बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग जैन सर तुझसे ग्रेट हो, सारे डाउट्स इजीली सॉल्व हो गए। अरे
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये सब आप लोगों का प्यार है और क्या। हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया है, HK यानी धीरज, HK यानी धीरज है। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का एक कोई क्वेश्चन का आंसर कैसे प्रेजेंट करना प्लीज एक बार बताओ। चलो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे। ये ऊपर ही दिख रहा है एक मेरे को, क्वेश्चन नंबर 3 में सी दिख रहा है। एक सेकंड, हाँ 3 में सी, क्वेश्चन 3C क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। X draws a bill on Y but signs it in a fictitious name of Z। fictitious name क्या हुआ है इसमें, पता है किसी को क्या हुआ है इसमें? fictitious name of Z, X ने ड्रॉ किया है बिल और साइन किया है एज Z। मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं लिखने का, बट मेरा जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम थोड़ा नहीं है मेरे पास, तो मैं इतने से डिवाइस पे कर रहा हूं। और इतना सा एक, ये क्या है ना, आविष्कार जब होता है तो तब होता है जब आपको जरूरत पड़ती है। तो जरूरत में मैंने सादे पेन को स्टाइलस बना लिया तो ये भी करना पड़ता है। चलिए बता रहा हूं। तो X draws a bill on Y but signs in a fictitious name of Z। इसने साइन कैसे किया? Z के नाम से, ठीक है। तो इसने साइन करते टाइम लिख दिया कि इट इज ड्रॉन बाय Z, Z के नाम से साइन किया। फिर द बिल इज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ Z, द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय Y, Y ने एक्सेप्ट करके इसको वापस भी भेज दिया, ठीक है, वापस भेज दिया। देन M ऑब्टेन्स द बिल, M ने बिल लिया फ्रॉम X, दस बिकमिंग द होल्डर इन ड्यू कोर्स। इससे M के पास चला गया अब बिल, तो मिस्टर M इनके पास बिल चला गया और M इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, HDC है वो। कैन Y अवॉइड द पेमेंट ऑफ द बिल, डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। किस पॉइंट पे है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है स्पेसिफिकली आपकी जो X ने साइन किया है तो क्या ये वैलिड है, इसके ऊपर है। तो Y अवॉइड कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। अगर राइटिंग मैच होती है, कौन सी राइटिंग? तो जो X ने ड्रॉ किया था तब की राइटिंग, ड्रॉ करते टाइम, और जब उसने एंडोर्स किया, अगर ये दोनों राइटिंग मैच होती है, ये दोनों राइटिंग मैच हो जाती है, देन यहां पे रिकवरी की जा सकती है, ठीक है। तो आप उसको उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हैंड राइटिंग मैच होना चाहिए। अब यहां पे भी ये लिखना पड़ेगा आपको, वो अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट टू इट इज इन द सेम हैंड राइटिंग, द हैंड राइटिंग ऑफ द ड्रॉवर एंड ऑफ द एंडोर्सर इज सेम, ठीक है। इट शुड बी इन द सेम हैंड राइटिंग, ठीक है। तो आपको वो स्पेसिफिकली वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कौन सा बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का C, सेक्शन 42, सेक्शन 42 पे। हाँ देखो, HK ने बोला भी सर सेक्शन 42 है, यस। सो HK यानी धीरज, ठीक है, धीरज ने बोला सेक्शन नंबर 42, तो यस ये सेक्शन 42 के ऊपर है। हाँ, और कोई क्वेश्चन है मैं देख लेता हूं। तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, इसको भी वैसे ही लिखो, इसमें डायग्राम बनाओ, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वहां लिखो सेम हैंड राइटिंग लिखो, ठीक है। आपके पास डायग्राम्स बने होंगे, डायग्राम्स बनाओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ इतना क्लियर नहीं बना पाया, बट आपको अगर लगता है तो आप मेरे से बाद में पूछो, मैं आपको बता दूंगा, डायग्राम्स बना के दे दूंगा, ठीक है। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नमन का क्वेश्चन है, सर जनरल क्लॉजेस एक्ट का कितना वेटेज है, ये चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप छोड़ने का सोच रहे हैं, मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, छोड़ने का बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही समझ गया मेरे को कि आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं। देखो, कोई भी चीज, मैंने अभी बोला ना 100% पढ़ो भाई, पूरा नहीं आएगा कुछ तो आएगा, आप थोड़ा तो लिख पाओगे, और एक एक मार्क से फर्क पड़ता है, एक एक मार्क से। CA एग्जाम से 1 मार्क की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक एक मार्क तो CA बाबू जानते हैं, तो ऐसा है। हाँ, एक शर्वरी का YouTube लाइव पे क्वेश्चन है, पेनल्टीज याद करना होगा क्या? करके देख लो, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आप एक CA को पूछो, एक CS को पूछो, उसको पेनल्टीज याद नहीं होगी, कितने सब्जेक्ट में करोगे आप?
लॉ है, फिर टैक्सेशन है, उसमें भी डीटी है, आईडीटी है। क्या करोगे आप? पेनल्टीज रटना ही नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली, जैसे सेक्शन 127 वगैरह वगैरह, ऐसे जो है 447, ऐसी जो पेनल्टीज है वो याद रखना है, या जो अमेंडमेंट है, या जो ऑडिटर पे लग रही, हम पे लग रही, हम पे, जैसे कुछ प्रमोटर्स वगैरह के चैप्टर में दिया है जो ऑडिटर पे भी लगती है, प्रमोटर्स में प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में जो ऑडिटर पे पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टीज याद रखो। हम पे लग रही ना वो, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 8 गुना आपको पैसा देना पड़ेगा फ्रॉड करोगे तो, ये सब जो है ये याद रहना चाहिए, ठीक है। नॉट ऑल द पेनल्टीज, इट इज इम्पॉसिबल। सीए सीएस जो हो चुके हैं उनको भी याद नहीं रहेगी, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। मैं डिफिकल्ट भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और कोई सवाल? कोई भी सवाल? और एक सिंपल पॉइंट बता देता हूं, क्वेश्चंस जो हैं आपके, नंबरिंग प्रॉपर डालो। नंबरिंग में गड़बड़ कर देते, पूरी नंबरिंग डालो, पूरी नंबरिंग। क्वेश्चन 1A1 पूरा लिखो, 1A2 सिर्फ 2 मत लिखो, पूरा लिखो, 1A2 पूरा लिखो। कहीं भी मार्क छोड़ने का मौका ही मत दो कि मार्क्स काटे जाएं, मुझे समझा नहीं और मार्क्स काट दिए, मौका ही मत दो। नंबरिंग पूरी डालो, ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल स्कैन्ड कॉपीज होती है और स्कैन्ड कॉपीज में नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैन्ड कॉपीज जाती है, उसके ऊपर फिर चेकिंग होती है, मार्क्स मिलते हैं। तो अगर फिजिकल कॉपी है तो अपन पलटा के पीछे देख लेते हैं कुछ नंबर में गड़बड़ है, कुछ है तो, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं देखता। नंबरिंग 100% प्रॉपर होना, एकदम बिल्कुल पूरी पूरी नंबरिंग डालो। 1A1, 1A2, 1B, 1C1 पूरा लिखो, ठीक है। जो क्वेश्चन है पूरा, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 3A फिर 1 2 3, ऐसा नहीं, 3A1, 3A2, 3A3 पूरा लिखो, ठीक है। इसमें टाइम नहीं जाता, सर टाइम जाएगा, नहीं जाता, ठीक है। फालतू की बकवास में अपना टाइम जाता है, वो नहीं करना है। अपने को टू द पॉइंट होना, ये जरूरी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैं डीप में नहीं जा रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है और नमन का, केस लॉ बताना जरूरी है। सेम चीज है जैसा सेक्शन के लिए आपने पूछा, क्या सेक्शन जरूरी है? पता है तो लिखना है। केस लॉस कुछ जगह तो जरूरी है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे केस लॉस के ऊपर ही केस है, यानी केस लॉ के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जैसे आप कंपनीज एक्ट में देखोगे, डी फॉर्म फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स टू दोस कंपनीज, ताकि उसको इनकम कम आए और इसीलिए वो टैक्स ना भरना पड़े, उसमें लिख दिया है। अब आपको यहाँ तो केस लिखना ही है, सर दिनशॉ मानिक जी पेतीत लिखना ही है, या मीनाक्षी मिल्स, सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी मिल्स, ये तो केस पे ही है जी, क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जहां सेक्शन नहीं है वहां केस इंपॉर्टेंट है, जहां ऑलरेडी प्रोविजन है इन द लॉ, देन देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ केस। बट जहां पे सिर्फ केस के ऊपर ही निर्भर करता है, केस लॉ के ऊपर ही निर्भर करती है चीजें, वहां तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो मत लिखो, लेकिन गलत मत लिखना, ठीक है। बट गिनती के केसेस तो हैं, पढ़ लो, 4 बार पढ़ लिए याद हो जाते हैं, रिवाइज कर लो, टाइम है अभी भी, आराम से होता है अभी भी, ठीक है। गिनती के केसेस हैं, ठीक है। और हाँ, जनरल क्लॉजेस में अगर आप केस याद नहीं रखो तो चलेगा, वो केसेस आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं है। आपको कहीं पे थोड़ा बहुत पता हो सकता है, लिख के आ जाए जनरल क्लॉजेस वगैरह। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में जनरल क्लॉजेस एक्ट ज्यादा पूछा गया है, जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछा है, बाद में थेरोटिकली भी शायद 2 क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर पेपर में। जैसे लास्ट वाला है, रिपील एंड डिलीशन का फर्क बताओ। सो रिपील मीन्स ऐसा है कि जहां पे मान लिया जाता है कि है ही नहीं, वो कभी कानून में था ही नहीं, तो इट नेवर एग्जिस्टेड। बट डिलीशन माना जाता है, डिलीशन के पहले तक था, डिलीशन के बाद नहीं है। अपने वर्ड्स में लिखो चलेगा, ठीक है। तो 3 मार्क यहां आ गए जनरल क्लॉजेस एक्ट, पहले ऊपर आ गया 4 मार्क का, 7 मार्क हो गए। सी वाला जो ऊपर का क्वेश्चन है, ये भी जनरल क्लॉजेस एक्ट का फुकट का क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है, फ्री फ्री फ्री, तो ये सिंगुलर और प्लूरल वो है, ठीक है, जनरल क्लॉजेस एक्ट। फिर एक आध एमसीक्यू में कहीं मिल जाएगा आपको 1-2। सोचो 8 मार्क आ गए, 8 मार्क,
जनरली 4 मार्क पूछते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट पे, पर 8 मार्क पूछे तो आप क्या बोलोगे? बोल दोगे कि नहीं नहीं 4 पूछना चाहिए था, ऐसा नहीं, हम कट्टी होंगे क्या अपन? तो नहीं, आपको तो लिखना है। और एक चीज जो आप मन में बांध के रखते हो कि इंस्टीट्यूट पास नहीं करता, इसको मन से निकाल दो। इंस्टीट्यूट का काम पास करना है, इंस्टीट्यूट का काम सीए बनाना है। वो सीए नहीं बनाने के लिए नहीं बना है, इंस्टीट्यूट सीए बनाने के लिए बना है। गलती हम करते हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियां होती है जिसके कारण हमारे मार्क्स कटते हैं। एक आध केस हो सकता है एरर में निकल जाए, लेकिन ज्यादातर केस में बच्चों की गलती होती है और हम बहुत अच्छे से आरोप लगा देते हैं कि पास नहीं किया जाता। ध्यान रखो, इंस्टीट्यूट सीए बनाने को बना है, वो आपको पास करने को बैठा है। आप बस काबिलियत बताओ, ठीक है? तो आपको काबिलियत बताने की जरूरत है। देन सोनाली का एक क्वेश्चन है, सर मॉड्यूल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है क्या ऑल सब्जेक्ट्स की? इसका एक जवाब नहीं दे सकता मैं। अब जैसे कुछ बुक्स होती है जिसमें बुक्स में ही सब कवर कर लिया, जैसे अगर आप मेरी बुक से पढ़ोगे तो मेरे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक या बुक्स आप देखोगे सब चीजें कवर्ड है, आपको मॉड्यूल के अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। और फिर कुछ इसमें जैसे अकाउंट्स वगैरह हो गया, उसमें सब रिपीटेटिव टाइप होते हैं, तो मैं खैर उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टॉपिक है दैट इज ओनली रिलेटेड टू लॉ। और वैसे ही आप डिपेंड करता है आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। अगर आपके बुक में ऑलरेडी सब चीजें कवर है तो क्यों फालतू आप मॉड्यूल में जा रहे हैं? मॉड्यूल मत पढ़ो, उसके बदले आरटीपी पढ़ो ना, आरटीपी उठाओ, एमटीपी उठाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना टाइम नहीं है कि आप वो भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी सब सब सब। इट इज इम्पॉसिबल। अगेन इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है? कोई भी बोलेगा कि मैं कर सकता हूं, मैं बोलता हूं नहीं कर सकते। हाँ 1% कोई होगा तो कर लेगा एक पूरी चीजें, पुराने मॉड्यूल भी उठा लिए, पुराने आरटीपी भी ले लिए। आरटीपी कम से कम 2-3 बार की पढ़ो, पिछली बार की, ठीक है, अभी की, पिछली, और इस बार तो बहुत जरूरी है, पिछले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी वैसे के वैसे आ सकते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है? हाँ एक और क्वेश्चन है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में इफ डेफिनेशन पूछी है and the question is for 3 marks but definition is just of 3 lines, so can we get whole 3 marks? Exactly, मैंने जैसा बताया कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको लेंथ ऑफ द आंसर पे मार्क नहीं मिलते हैं, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे यही क्वेश्चन उठाओ ना, अभी मैंने कौन सा बताया था आपको, जनरल क्लॉजेस एक्ट का एक क्वेश्चन उठाया था मैंने, यही है सी वाला ऊपर का क्वेश्चन। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें, एक सेकेंड, हाँ इसमें आपको कितने मार्क्स का है? ये 4 मार्क का है। क्वेश्चन क्या पूछा है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अ होल टाइम केएमपी, बुक का क्वेश्चन है आपके, शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी। सिर्फ सब्सिडरी में ऑफिस होल्ड कर सकता है या खुद के इसमें, एज की मैनेजरल पर्सन, होल टाइम की मैनेजरल पर्सन, होल टाइम। ठीक है? 2 जगह होल टाइम कैसे रहोगे आप? एक जगह रह सकते हो या उसकी सब्सिडरी में रह सकते हो। रेफरिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द जनरल क्लॉजेस, लो सेक्शन भी लिख दिया, सेक्शन भी पूछा नहीं आपको, बता दिया। देखो, एग्जामिन वेदर द होल टाइम की मैनेजरल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन सब्सिडरी, क्योंकि यहां वर्ड क्या लिखा है? सब्सिडरी। क्या लिखा है? यहां वर्ड लिखा है सब्सिडरी कंपनी, तो क्या एक ही सब्सिडरी? तो नहीं, आपने क्या पढ़ा है सेक्शन 13 में कि सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। अगर मैं बोलूंगा अगर कंपनी गड़बड़ करती है तो डायरेक्टर विल बी लायबल, ऑफिसर विल बी लायबल, तो क्या एक ही ऑफिसर लायबल होगा क्या? नहीं, ऑफिसर्स। तो एक भी लिखा है तो सब लायबल होंगे, ऑफिसर्स। ठीक है? वैसे ही यहां पे सब्सिडरी में हो सकता है, तो क्या एक ही सब्सिडरी में हो सकता है क्या? नहीं, सब्सिडरीज में भी हो सकता है। ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट। है कितना? 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइन का, 4 मार्क को पूछा है। तो देखो मैंने जैसा बताया कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, कंटेंट है ही नहीं तो आप कहां से लाओगे? क्या लिख लोगे इसमें? और खुद सोच के देखो क्या लिखोगे आप इसमें? और 1 लाइन का तो सेक्शन है वो, क्या लिखोगे आप? सिंगुलर अगर बोला है तो इट विल ऑल्सो इंक्लूड प्लूरल एंड वाइस वर्सा, बात खत्म हो गई। क्या लिखोगे आप? एनालिसिस लिखो और क्या करोगे? तो 2 लाइन 3 लाइन में बात खत्म हो जाती है, तो 2-3 लाइन लिखो, आपको 4 मार्क मिलेंगे। तो ऐसा है।
पवन का क्वेश्चन है सर लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत जाती है, कैन कंपलसरी टू यूज स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ एक्ट, तो इज इट कंपलसरी, ऐसा पूछना है इनका। और सिंपल मींस थोड़ा अपनी भी चल सकती है। देखो कंजंक्शंस आप कैसे भी यूज करो, जोड़ने को कुछ भी यूज करो चलेगा, पर जहां पे जो वर्ड आना चाहिए वैसे ही आना चाहिए। जैसे सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, आप सिंगुलर की जगह क्या वन इंक्लूड्स मेनी लिखोगे तो ये गलत है। गलत यानी सही है बट मार्क्स कटेंगे। ये है एकदम वन इंक्लूड्स मेनी, मेनी इंक्लूड्स वन, ये लैंग्वेज हम एक्सपेक्ट नहीं करते, मार्क्स कटेंगे 100%। और आप अगर ऐसा लिखोगे कैन कंपलसरी टू यूज स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ एक्ट, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग इंग्लिश, गलत है, ठीक है। इज इट कंपलसरी टू यूज स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ एक्ट, तो ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना, एकदम लेमेंस लैंग्वेज में आपको आंसर नहीं होना। आप इंटर में दे रहे हैं एग्जाम, ये फाउंडेशन नहीं है, तो आपको थोड़ा उतना ध्यान रखना पड़ेगा। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगा एकदम वैसे के वैसे रहे, जैसे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which has a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the number of restricts the transferability of shares। अब वहां वर्ड क्या है, restricts the rights to transfer the shares। अब आप restrict वर्ड इंपॉर्टेंट है वो वैसे लिखो, फिर restricts the right to transfer shares लिखो, restricts the transferability of shares लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, restricts वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर prohibits public subscription लिखो चलेगा, वैसे पूरे वर्ड्स वहां पे क्या लिखे हैं, prohibits the public to subscribe to any of its securities, सीधा इतना लिखे prohibits public subscription of any securities to any securities, बात खत्म हो गई। आप उतना लिख रहे हैं सफिशिएंट। एब्रीवेशंस यूज मत करो। दिशा का एक क्वेश्चन है सर एब्रीवेशंस यूज कर सकते हैं क्या, जैसे कंपनी को सिर्फ सीईओ लिख दिए, नहीं मत यूज करो, मत यूज करो, वहां टाइम मत बचाओ, वो चीज से टाइम नहीं जाता है। हाँ ऑफ कोर्स की मैनेजरल पर्सन को केएमपी करो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है वो, पर आप कभी भी ऑफिशियल इसमें कंपनी को सीईओ नहीं लिखते हैं। आप देखोगे अगर आप पेपर में या अपने स्टडी मटेरियल में देखो, कहीं भी आप ऐसा नहीं दिखेगा। हाँ जहां यूज किया है खुद इन्होंने, जहां वो खुद ही बोल रहे हैं केएमपी, वहां पे आप केएमपी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां ओपीसी बोला है वहां ओपीसी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कंपनी को मत करो, ठीक है, कंपनी को कंपनी रहने दो, कंपनी को मत करो। अगर कंपनी को करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, तो एग्जाम में मार्क्स शॉर्ट होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं, होंगे नहीं होंगे नहीं बताया जा सकता, ठीक है। वो डिपेंड करेगा जो भी चेक कर रहा है उसकी मानसिकता पे। अगर वो कहीं उसका झगड़ा हुआ है घर पे, उसके बाद वो पेपर चेक करने बैठा है, तो गुस्सा आपके पेपर पे निकलने वाला है। और वहीं आपने अगर उसको पेपर दिखा के खुश कर दिया है, तो खुश कर दिया है ना आपने, नोट्स वगैरह प्रॉपर लिखे, नोट्स लगाना चाहिए उसमें, नोट्स यानी वो वाले नोट्स नहीं तो लेगा और नोट लगाए, वो नोट नहीं, नोट यानी कहीं पे अगर कंफ्यूजन है, कहीं दो आंसर पॉसिबल लग रहे हैं, नोट लिख दो, कहीं क्लियरिटी नहीं है, नोट लिखो, नोट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ में तो उतना नहीं पड़ता है, बट आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखोगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाओगे, आप अकाउंट्स, कॉस्टिंग या टैक्सेशन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स। नोट्स अगर आप लिखोगे तो नोट्स पे मार्क्स मिलेंगे, नोट लगाना चाहिए, पैसे वाले नहीं तो कैसे वाले, तो नोट लगाना है जो आपको क्वेश्चन को क्लियर समझा के दे, आंसर को क्लियर करके दे, ठीक है, आपने क्या इंटरप्रिटेशन लिया है, तो वो वाले नोट। हाँ और कोई क्वेश्चन यूट्यूब वगैरह पे? नो क्वेश्चंस, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे और कोई क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चन इसमें से मैं डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप बता सकते हैं, अगर आपको लगता है कि और कुछ डिस्कस करना चाहिए। आप लोगों ने पेपर दिया है जस्ट, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। कुछ कुछ क्वेश्चंस में वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन अब ध्यान रखो, आ ही गया है सामने। तो अमर बिल्ड 50 kg of high quality sugar to Srijit, who owned a kirana shop, promising to give rupees 200 at the time of taking back the bailed goods. Bailment का क्वेश्चन है। Srijit's employee, unaware of this, mixed the 50 kg of sugar belonging to Amar with the sugar in the shop and packaged it for sale with when Srijit was away. Srijit को नहीं पता था, उसके एजेंट ने काम किया है, उसके एम्प्लॉय ने काम किया है, तो भी Srijit is responsible.
This came to light only when Amar came asking for sugar. He has bailed with Sirjit as the price of the specific quantity of sugar has trebled. What is the remedy available to Amar under the Indian Contract Act? पहले तो यहाँ पे विदाउट कंसेंट किया है, आपको ही लिखना पड़ेगा. It is the duty of the bailee not to mix the goods with his own goods. Goods bailed with his own goods without the consent of the bailer. Bailer से पूछे बिना नहीं मिला सकते. पहला पॉइंट, पहला प्रोविजन, नॉट टू मिक्स विदाउट कंसेंट वर्ड लिखना है, अंडरलाइन करना है. दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि अगर मिला दिया तो क्या होगा. अगर मिला दिया तो दो सिचुएशन अराइज हो सकती है. पहला, द गुड्स आर सेवरेबल, अलग किए जा सकते हैं, इट कैन बी सेपरेटेड. दूसरा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. अगर सेपरेट किए जा सकते हैं तो क्या होगा. तो जो अमर है, अमर नहीं सिरजित है, सिरजित का काम है, सिरजित उसको अलग अलग करके देगा, अलग करने का खर्चा खुद बेयर करेगा. पर यहां पे गुड्स ऐसे हैं जो कि नहीं किए जा सकते अलग. शुगर है, शक्कर है, शक्कर को कहां से निकालोगे आप, कुछ नहीं कर सकते आप. शक्कर तो गई, मिल गई सब, कुछ नहीं कर सकते आप. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. ऐसे केसेस में पूरा मिक्सचर वो खुद रख लेगा और ही विल हैव टू कंपेंसेट द अदर पर्सन. ठीक है, कंपेंसेशन देना पड़ेगा. हाँ, और कोई क्वेश्चन, एनी डाउट, कोई शक, कोई सवाल. हाँ, थैंक यू थैंक यू. यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आए, धन्यवाद. अनिकेत बोल रहे हैं बेस्ट फैकल्टी आई हैव एवर सीन, सीए शशांक शर्मा सर. अरे थैंक यू. अबोली भी बोल रही है. सो ऐसा है, बेस्ट फैकल्टी फॉर सीए. थैंक यू. वो क्या है ना, स्टूडेंट्स जो रहते हैं, स्टूडेंट्स टीचर को अच्छा बनाते हैं. स्टूडेंट्स अगर अच्छा करेंगे तो टीचर का अपने आप नाम होता है. हाँ, एक और क्वेश्चन है सर. वन क्वेश्चन ऑन कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डिनेंस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज डिफरेंस. यस, अलग चीज है दोनों. ठीक है, अलग है दोनों. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलग चीज हो रही है, सेक्शन नंबर 10A की बात हो रही है, सेक्शन 10A. और सेकेंड ऑर्डिनेंस अलग चीज है, यानी वो एक्ट की बात हो रही है. एक्ट बदल गया. ये एक्ट का एक प्रोविजन है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलग चीज है. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक नया सेक्शन लाया गया है 10A, जो आपको ऑलरेडी पता है. पहले 11 था, 11 हटाया गया, फिर 11 तो हट गया था, फिर से 11 नहीं ला सकते, और 10 के बाद अपने को सेक्शन चाहिए था, तो एक नया सेक्शन लाया गया 10A, जो बोलता है कि कंपनी बनने के बाद कंपनी शुड नॉट कमेंस एनी बिजनेस. कंपनी ने बिजनेस चालू नहीं करना चाहिए जब तक के डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते डायरेक्टर्स, और सेक्शन 12 के हिसाब से रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता. तब तक आप ना बिजनेस चालू कर सकते हैं, ना बोरिंग पावर्स एक्सरसाइज कर सकते. दिस इज सेक्शन 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट. तो सर्टिफिकेट नहीं रहता है आजकल, सिर्फ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. गुंजन का एक क्वेश्चन है सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट का भी पॉइंट वैसे ही लिखे उसमें, तो थोड़ी बातें बार बार वही आती है. तो हाँ, तो बार बार करना ही नहीं है. एक बात जो हो गई वो हो गई, बार बार बातें नहीं करना. ठीक है, सोच के देखो, आप बार बार बातें कर रहे हैं. आप मेरे पास आए, मेरे को बोल रहे हैं सर मेरा नाम गुंजन है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बोल रहे हैं सर मेरा नाम गुंजन है, तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा. ये चीज होती है पेपर चेक करने वाले के साथ. नहीं लिखना है बार बार. ठीक है, तो यहाँ तो आप आमने सामने होके बोलोगे तब तो इरिटेट होंगे, लेकिन जब पेपर में लिख रहे तब तो ज्यादा इरिटेट होंगे. तो बार बार नहीं लिखना है. ठीक है. हाँ, पराग का क्वेश्चन है सर, एक बार डीवीआर में जो परसेंटेज का पॉइंट है वो एक्सप्लेन करिए ना. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स की बात कर रहे हैं. ये एट प्रेजेंट मैं पूरा का पूरा तो एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाऊंगा. आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं. आप तो मेरे को पर्सनली जानते हैं पराग, तो आप मुझे अलग से पूरा पूछ लेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा के बता दूंगा. ठीक है, तो उसमें जो एक्चुअली ये जो शेयर्स आप इशू करते हैं जो अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग हो या डिफरेंशियल राइट्स हो, शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, सो उसमें अभी चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा है, वो मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा. वो परसेंटेज वाला है क्योंकि, तो उसमें मेरे को पूरा कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा है, तो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हो. हाँ, सेकेंड ऑर्डिनेंस की डेट कौन सी होती है सर? वो डेट्स वगैरह के पीछे मत जाओ. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो बिल्कुल मत जाओ.
अब कौन सी होती है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अलग अलग कौन सी चीज की बात हो रही है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो होती है नहीं बोलना चाहिए, कौन सी है बोलना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल डेट्स के पीछे मत जाओ, आपने वैसे डेट्स जैसे लिख के दिए हैं 2 नवंबर 2018, तो उस प्रकार से डेट्स होती है, बट आप फिलहाल वो मत ध्यान रखो, सिर्फ ये ध्यान रखो कि ऑर्डिनेंस के बाद से। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि डेट्स बहुत है, आप कितनी डेट्स याद रखोगे। ठीक है, और ये डेट्स पे कोई मतलब नहीं है, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी डेट्स है बहुत सारी, कोई काम की नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स जब आप पहले पूछते तो मैं बोलता था याद रखो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट द टाइम कि आप ये डेट्स वगैरह रटने के पीछे टाइम वेस्ट करो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका काम क्या है, आपका काम है सिर्फ कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट करो और लिखने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो। डेट सेक्शन ये सब अब याद करने का वक्त नहीं है। अगर आप ये 6 महीना पहले बोलते तो मैं सजेस्ट करता था आपको ये चीज याद रख लो, ये वाली चीजें याद कर लो, बट अब मैं नहीं बोलूंगा, तो अब पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, हाँ, और कोई डाउट्स? एक बार YouTube पे भी देख लेते हैं। हाँ, कोई डाउट्स तो नहीं है फिलहाल यहाँ पे भी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं होगा तो मैं फिर, और वैसे मेरे पास अभी ज्यादा ऐसा है नहीं कि मैं कुछ अलग से बताऊं। ठीक है, और ये डेट्स याद मत रखो, और गलत तो बिल्कुल मत रखो। सेक्शंस के भी लिए सेम आंसर है और केस लॉस के लिए भी सेम आंसर है। अभी याद मत करो, पहले कर लेते तो बात और थी, बट अब उसके पीछे मत भागो। अब जो चीज पढ़े हो ना उसको अच्छे से और रिवाइज करो। ठीक है, दैट इज मेन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे आपकी डेट गलत है, वो 2 नवंबर है मेरे ख्याल से, वो 7 या 8 दिसंबर होना चाहिए वो। ठीक है, 7 दिसंबर होगी जहां तक, तो इसीलिए गलत याद मत रखो। कोई और डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसमें से और कोई पॉइंट बताना होगा तो, वो एक केस डिस्कस करना होगा तो वो कर सकते हैं अपन फिर से। वैसे वो सेकंड केस काफी आसान था। तो अगर एमसीक्यू डिस्कस करना होगा तो मैं बता देता हूं, बाकी तो सिंपल है। या नहीं तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको जितना जरूरत थी उतना मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना, 3-4 पॉइंट सम अप कर देता हूं मैं आपके लिए। पहली चीज, शुरुआत करोगे क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर होना, पूरे होना, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर्स लिखो। दूसरी चीज, जब प्रेजेंटेशन करोगे आप तो प्रेजेंटेशन में उसको एप्लीकेबिलिटी, प्रोविजंस, एनालिसिस, कंक्लूजन, खत्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन होना ही चाहिए, मैं ये ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, करना है आपको अंडरलाइन। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। और अगर आपका सिर्फ 4-5 मार्क का भी फर्क पड़ा तो 4-5 मार्क बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखो, रटने की चीज के बदले ये चीजों पे ध्यान रखो। ठीक है, तो रटने के पीछे मार्क्स नहीं है। इनफैक्ट आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस देखो, आपको खुद को समझेगा कि क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि दे वांट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दे डू नॉट वांट कि आप उसको रट लें। एक एक वर्ड पे, पार्टली पेड वर्ड पे क्वेश्चन पूछ लिया, फुल्ली पेड वर्ड पे, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, समझने पे ध्यान दो। ठीक है, सो अगर आपके पास अभी और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, कोई सवाल नहीं होंगे, तो लेट्स कंक्लूड द सेशन, क्योंकि आपके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो है ही, बट आपके लिए भी टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग वैसे टाइम होने आया है, लास्ट 10-15 मिनट्स में आपके कोई अगर क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेरीज होगी तो आप पूछ लें, नहीं तो अपन कंक्लूड करते हैं सेशन को। कोई भी क्वेश्चन? निखिल का क्वेश्चन है, सर कैन वी अंडरलाइन आफ्टर द पेपर इज कंप्लीटेड और साइमल्टेनियसली? ट्राई करो साइमल्टेनियसली हो सके, साइमल्टेनियसली साथ साथ में, क्योंकि
उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप बाद में करके अंडरलाइन कर लोगे। अगर बात के लिए छोड़ा तो वो छूट जाता है। कई बार जिंदगी में चीजें साथ साथ करते जाना चाहिए, अगर आपने छोड़ दिए तो वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो साथ साथ लिखो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं इसीलिए बोल रहा, पेंसिल मत उठाओ अलग से, आप जो लिख रहे हो लिखते लिखते लिख दिए उसको, लिख के अंडरलाइन कर लिए, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो, सो लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। कोई और सवाल होंगे तो आप पूछ लो, नहीं तो आई विल हैंड ओवर टू सम्यक मोदी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो सभी लोग, कोई भी अगर डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम रही तो आप मेरे को जानते हैं, या आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं, जिसको आप करीबी समझते हैं। प्रेशर मत आने दो अपने ऊपर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम तो क्लियर होना ही है, बट ध्यान रखो अपनी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना मेंटल हेल्थ ना फिजिकल हेल्थ। बराबर हाइड्रेटेड रखो बॉडी को, पानी वानी पीते रहो। एग्जाम के टाइम पे भी ज्यादा फिक्र मत करो, एक छोटी सी एग्जाम है, ऑफ कोर्स पास होना है, बट टेंशन लेके नहीं करना है। सीए आसानी से होता है अगर आप रेगुलर करते हैं तो। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है आप उसको जानते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बहुत, लेकिन मैं सीए में बहुत अच्छा कर लिया। क्यों कर पाया? एक कंसिस्टेंसी बनी रही, रिविजन्स करते रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप एक एवरेज पढ़ाई करते हैं 10 घंटे 12 घंटे, दैट इज सफिशियंट। इवन अगर अभी भी 12 घंटे पढ़ाई बहुत है, आपको लग रहा होगा सर 12 घंटे, हाँ होती है, आपने खुद किया है। और रिवीजन होता है आखिरी टाइम पे। आप सोचो खुद, फाउंडेशन आपने जब क्लियर किया, आप सोचते थे इतनी मोटी बुक कैसे कंप्लीट होगी, किया ना आखिरी दिन आपने। इंटर में क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। उतने से थोड़ा ज्यादा है कोर्स, बट अल्टीमेटली आपको टाइम भी ज्यादा मिला है। आपने फाउंडेशन में 4 महीने में किए थे जो चीजें, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पूरे मिले हैं। तो 9 मंथ से थोड़ा ज्यादा ही मिला है, और अभी तो पोस्टपोन वगैरह हुए हैं तो उन लोग को तो और टाइम मिला है। सो 100% पढ़ो, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट रहा तो पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सो सम्यक, I will hand over Thank you to so you. much, sir, for such an insightful session. I hope this has cleared all the fear of students regarding the paper of law. Now, I would request Mr. Anmol Chandak, Secretary, Nagpur branch of Vikasa, to propose a formal vote of thanks. Hello, I'm audible? Anmol, Yes. your voice is not that high. Now it's audible clearly. Yeah. Good evening, respected dignitaries and my fellow colleagues attending this session. This is Anmol Chandak, Secretary, Nagpur branch of Vikasa. It gives me an immense pleasure to propose a formal vote of thanks on the behalf of Vikasa Nagpur for such an fruitful session. I would like to express my sincere gratitude to our honorable guest faculty for the session, CA Shashank Sharma sir, for sparing his valuable time from his tight schedule and guiding and helping the student for embrace their knowledge and giving many strategies and motivated them. Hope that this session will help the students to score the very good marks in the paper of law. Thank you, sir. I would like to thank the pillar of the session, CA Akshay Gulane sir, Chairman Nagpur branch of Vikasa, CA Kirit Kalyani sir, Chairman Nagpur branch of WIRC, CA Abhijit Kelkar sir, Regional Council member WIRC, without whom this session would not have been possible. Last but not the least, I would like to thank each and every student for their utmost patience and cooperation. Hope this session has helped you all to a very large extent and will help you to outshine in the upcoming exams. All the very best. Thank you. Over to you, Samir. Thank you, Anmol. Students who are having further queries can mail us at vikasa2020@gmail.com. And I hope that this session was very useful for you. In this series, tomorrow we are having CA Avanti Jain for taxation paper 4. So you can join tomorrow also.
same time 6:30 p.m. Thank you.